کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبی والا کام عطا فرمایا ہے. نبی کے کام سے اللہ پاک انسانوں کو اچھے جینے کے طریقے دیتے ہیں. ان کے اگر ان کو صحیح طریقے نہ ملیں تو پھر وہ ایسے جینے کے طریقوں پر پڑ جاتے ہیں کہ بعض طریقوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور بن جاتے ہیں. بلکہ یوں فرمایا ہے کہ جانور سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. کہ جانور دنیا میں ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس پر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ جانور کسی کو پھاڑ کھاتا ہے, کسی کی بکری کو مار لیتا ہے, کسی کے گھر میں گھس جاتا ہے, کسی کے کھیت میں گھس جاتا ہے. آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی جانور ہے. لیکن دنیا میں بیسیوں انسان ایسے ملیں گے کہ جو اپنی سوجھ بوجھ شعور کے باوجود ایسی حرکتیں کرتے ہیں, اس سے بھی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. انسانوں کو صحیح جینے کے طریقے جو ملتے ہیں وہ نبیوں کے راستے سے ملتے ہیں. نبیوں کی محنت کے ذریعے سے انسان بنتے ہیں. نبیوں کی محنت کے ذریعے سے انسانوں کو جس ماحول میں رہنا ہے اس ماحول میں پاکی وجود میں آتی ہے, حیا وجود میں آتی ہے, جینے کی اچھی شکلیں وجود میں آ جاتی ہیں. ورنہ اس دنیا کو آپ دیکھو تو دنیا سوارتھی ہے, لالچی ہے. ہر ایک دوسرے سے لالچ کرتا ہے. لالچ اللہ کی بڑی نعمت ہے جبکہ وہ صحیح رخ سے استعمال ہو. بھائی ڈاکٹر صاحب کے دل میں لالچ ہے پیسے کمانے کی تو رات کو 12 بجے تک بیٹھتا ہے. اگر اس کے دل میں سے اللہ لالچ کو ختم کر دیں اور اس کے دل کی 1000 روپے کی ضرورت ہے, صبح صبح اس کو 1000 روپے کے پیشنٹ مل گئے, اس کے دل سے اللہ نے لالچ ختم کر دی تو پھر وہ دواخانہ بند کر کے چلا جائے گا. تو پھر پیشنٹوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کے دل میں لالچ رکھ دی تو اس کی لالچ کی وجہ سے پیشنٹوں کی ضرورت پوری کرواتے ہیں. ایک اللہ کی نعمت ہے. محلے میں دکان کرانے والے ہوتے ہیں, پتہ کیسی کیسی دکان والے, ان کے دلوں میں لالچ اللہ نے رکھ دی پیسے کمانے کی. ان کی لالچ کی وجہ سے وہ بیٹھے رہتے ہیں دیر تک اور لوگوں کی ضروریات پوری کی جاتی ہے. یہ لالچ, اگر اس کے دل سے اللہ لالچ نکل دیتے اور اس کے دن بھر کی ضرورت 500,000 روپے کی ہے, وہ صبح صبح مل گئی, پھر اس کے بعد وہ تالا لگا دے دکان کو, تو دن بھر میں محلے والوں کا کیا حال بنے گا؟ تو لالچ یہ بھی اللہ کی رکھی ہوئی ایک چیز ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال, اگر صحیح استعمال نہ ہو تو پھر بیٹا باپ سے لالچ کرتا ہے, سگا بھائی بھائی سے سوارتھ کرتا ہے, بیوی شوہر سے سوارتھ کرتی ہے, شوہر بیوی سے سوارتھ کرتا ہے, اور سوارتھ پورا نہ ہو تو پھر ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں, سوارتھ کرتے ہیں. سب سے پہلا خون اس زمین پر جو ہوا وہ سوارتھ میں ہوا. آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے تو ان کے نکاح کی تقریب کی گئی. ایک نے تمنا کی کہ فلاں سے میرا نکاح ہونا چاہیے, اب جب کہ طے ہو گیا تھا کچھ تو دوسرے کا ہوگا, تو سوارتھ ہوا. تو اپنی چاہت پوری نہیں ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کا مرڈر خون کر دیا. تو نبیوں کی محنت جذبات کو صحیح بناتی ہے, فکر کو صحیح بناتی ہے, سوچ کو صحیح بناتی ہے, جینے کے طریقوں کو صحیح بناتی ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس زمانے میں ہمیں وہ محنت عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے سے افراد بھی بنتے ہیں اور جس کے ذریعے سے ماحول بھی بنتا ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور حضور کی بعثت جس ماحول میں ہوئی ہے وہ ماحول کیسا تھا کہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے. ایسی جہالت کہ اس کا تصور نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد, اس تب سے لے کر آج تک کسی نے کیا ہے. اس زمانے سے لے کر آج تک کسی نے بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کیا. اس زمانے سے لے کر آج تک کسی نے اپنی لڑکی کو زندہ درگور نہیں کیا. کہ سب سے برا ماحول تھا, 600 سال کی جہالت بھری ہوئی تھی.
تو افراد میں بھی برائی آ گئی اور ماحول میں بھی، کہ ان برائیوں کو اچھا سمجھا جانے لگا، برائیوں کو اچھا سمجھا جانے لگا، شراب پینا اچھا سمجھا جانے لگا، لڑکی کو درگور کرنا اچھا سمجھا جانے لگا۔ انہیں عرب میں قبیلہ تھا، اس قبیلے کی عادت یہ تھی کہ جب ان کے گھر میں بچی بالغ ہوتی تھی تو اپنی بالکنی میں گھر کے کپڑا لٹکا دیتے تھے۔ محلے کے جوان دیکھتے تھے کہ یہاں بالکنی میں کپڑا لٹکا، اس کا مطلب کہ اس گھر میں لڑکی بالغ ہوئی ہے، تو وہ رات گزارنے کے لیے اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں۔ آج یہ لڑکا، دوسرے دن دوسرا لڑکا۔ جب بچی کی ولادت ہوتی تھی تو بچے کی وہاں ولادت ہو جائے تو اس کے بعد لڑکے کو دیکھا جاتا تھا کہ محلے کے کس جوان کی یہ مشابہ ہے، جس کے مشابہ ہوتا اس کے ساتھ نکاح کروایا جاتا، اور اس کا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اتنے خرافات بھرے ہوئے تھے۔ ان ساری چیزوں میں جو تبدیلی آئی افراد میں بھی اور ان کے ماحول میں بھی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت سے ہوئی۔ مائل ایسا فرماتے تھے کہ میں اس محنت کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ جب جب بھی نبی والی محنت کی جائے گی اور ایسے کی جائے گی جیسے اس کو کرنا ہے، تو اس کے اثرات وہ ظاہر ہوں گے جو کرنے اول میں ظاہر ہوئے ہیں، کہ اس سے لوگ بھی بن جائیں گے اور جس ماحول میں اس کو کیا جائے گا وہ ماحول بھی بن جائے گا۔ مائل ایسا رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ محنت شروع کی تو میوات کے اس علاقے میں کی تھی کہ جو علاقہ سب سے خستہ شمار ہوتا تھا، سب سے عجیب و غریب کے ڈاکہ خوری تھی، اور پتہ نہیں گوبر کی پوجا تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا ان میں خرافات تھے۔ جب ان کی تاریخ پڑھتے ہیں وہ ساری چیزیں تھیں، لیکن صحیح رخ کی جب محنت ہوئی تو انہیں میں ماشاءاللہ اچھے افراد وجود میں آ گئے، دینی معیار ان کا اوپر چلتا گیا، خیر خائی وجود میں آئی، ہمدردی وجود میں آئی، ساری کی ساری بھلائی وجود میں آ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جن علاقوں میں کی جائے گی، جن افراد پر کی جائے گی، ان میں یہ محنت اگر صحیح ہوئی تو یہ تاثیر وجود میں آئے گی، بشرطے کہ وہ محنت اچھی ہو، صحیح رخ سے ہو۔ دنیا میں جتنی بھی محنتیں ہیں اس کے دو اثرات ہوتے ہیں، منفی اور مثبت، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ ہر چیز اچھا اثر بھی رکھتی ہے اور ہر عمل منفی اثر بھی رکھتا ہے۔ جیسے نماز اگر اچھی ہے تو آسمان پر جاتی ہے، دعا دیتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، اور اگر وہی نمازی نے پڑھی ہے لیکن صحیح نہیں پڑھی تو وہی نماز یہ کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ایسے برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا، کہ نماز پڑھ بھی رہا ہے اور منفی اثر ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھنا اگر اچھا پڑھا جائے تو اس کے آسمان پر جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، آسمان پر جاتا ہے پڑھا ہوا، اور اسی پڑھنے کو اگر کوئی غلط کر دے تو پھر اس کے منفی اثرات ہیں۔ رب قارئ والقرآن یلعن علیہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ ایسے ہی حضور والی یہ محنت بہت سالوں پہلے لکھنؤ میں ایک اجتماع ہوا تھا جس میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اس میں فرمایا کہ اگر اس کو اچھے سے کیا جائے گا جیسے کرنا ہے تو سال ہر سال میں آنے والی خیر سلوٹوں میں آتے ہوں گے، یہ اس کے مثبت اثرات ہیں۔ اور خدا نہ کرے اگر اس کو صحیح نہیں کیا گیا تو اس کے علاوہ کی دوسری چیز وجود میں آئی۔ تو ہم کو اللہ نے توفیق دی ہے اس محنت کو کرنے کی، اس محنت میں لگنے کی، جس کے ذریعے سے ہم سب سنبھل رہے ہیں، ہم سب کو سنبھالا مل رہا ہے۔ ہم سب اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لیں، ہم کیسے تھے جب تک محنت میں نہیں لگے ہوئے تھے، ہم سب کیسے تھے۔ اللہ پاک نے صحابہ کو یہ بات فرمائی کہ آپ اپنی پچھلی زندگی پر غور کرو، تم کیسے تھے اور دین نے تمہیں کیسا کر دیا۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، تم تو دشمن تھے، ہمارا دین آیا اس نے تمہیں بھائی بنا دیا۔ تو ہم سب دیکھیں کہ ہماری پچھلا زمانہ کیسا تھا، محنت کے ذریعے سے ہم سب کو سنبھالا ملا، ہمارے گھر کا ماحول بنا، ہمارے محلے کے ماحول بن گیا، ورنہ
دنیا میں ایسے محلے ہیں، ایسا ماحول ہے کہ آدمی سکون سے بیٹھ نہیں پاتا. لوگ ایک علاقے میں گئے تھے ایک ساتھی سے ملاقات میں، تو ملاقات پوری ہو گئی، وہ ہمیں نہیں دے رہے، ارے بھائی کیا بات ہو گئی، اجازت 1.5 گھنٹہ ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. ارے بھائی کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں میری لڑکی کا دوست آیا ہوا تھا، بوائے فرینڈ، تو میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بٹھایا کہ آپ کی شرم میں میری لڑکی کوئی چیز اور دوسری نہ کرے. وہ ہماری تو شرم نہ کرتی، لیکن آپ کی شرم میں اور کوئی دوسری چیز نہ کرے، اس لیے اتنی دیر آپ کو بٹھائے رکھا. وہ اب چلا گیا، اب آپ کو بھی جانے کی اجازت ہے. اگر ماحول نہیں بنتا محلوں کا تو گھر بھی محفوظ نہیں رہ پاتے، افراد نہیں محفوظ ہو پاتے، گھر محفوظ نہیں ہو پاتے. ہم اپنے پیچھے پر احتساب کریں کہ ہمارا کیا حال تھا، ہمارے علاقوں کا کیا حالات تھے. اللہ پاک نے نبی والی محنت چلائی جس کے ذریعے سے ہمیں بھی سنبھالا مل گیا، ہمارا ماحول بن گیا. اور اس کے علاوہ ہم اور افراد کو متفقد کرنے کا ذریعہ ہم بنے. جن علاقوں میں چلنا پھرنا ہو رہا ہے ان علاقوں میں ہم خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن رہے ہیں ہمارے انہیں ساتھیوں کے ذریعے سے، ہمارے ضلعوں کے دیہاتوں میں. اور جب چلے چار مہینے میں جاتے ہیں تو جن علاقوں میں جن صوبوں میں جاتے ہیں وہاں ہم بہت بڑی خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ایسی طاقتور چیز اللہ نے ہم کو دی. شیطان کوشش یہ کرتا ہے بندوں پر کہ ایسی بڑی چیز کی طرف وہ متوجہ نہ ہو، تاکہ نہ وہ سنبھلے نہ ان سے دوسرے لوگ سنبھلے. اس لیے دنیا میں بہت بڑا مجمع وہ ہے جو اس کو اچھا سمجھتا ہے لیکن کر نہیں پاتا. اچھا سمجھتا ہے، اچھا کہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا. تو اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال نہیں ہے، یا شیطان کوئی حوادث پیش کر دیتا ہے کہ وہ اس میں چلے ہی نہیں. اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ ان میں سے نہیں ہوئے. اللہ نے ہم کو چلا بھی دیا، توفیق بھی مل گئی، چل بھی پڑے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جو چل رہے ہیں ان پر شیطان کیا کوشش کرے گا؟ ان پر شیطان یہ کوشش کرے گا کہ یہ اب کر تو رہے تو اچھا نہ کریں، تاکہ اس کے اچھے اثرات انہیں نہ ملے. کیونکہ اس عمل کا اثر ملے گا جو اچھا ہوگا. وہ نماز اثر کرے گی جو اچھی ہوگی، وہ تلاوت اثر کرے گی جو اچھی ہوگی، وہ روزہ اثر کرے گا جو اچھا ہوگا. اور اچھا نہیں ہوگا تو اثر نہیں کرے گا. ایسے وہ محنت اثر کرے گی جو وہ خروج اللہ کے راستے میں وہ جانا اچھا اثر کرے گا جو اچھا ہوگا. کہ اگر اچھا خروج ہوتا ہے تو آدمی کو قطب بنا دیتا ہے، اور اگر اچھا نکلنا بگڑ جائے تو آزمائش رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا جس میں پڑھا کہ پھر وہ ایسا بگڑ جائے گا کہ یہاں کا بگڑا ہوا پھر کہیں بنے گا بھی نہیں. ایسا حضرت نے لکھا فرمایا کہ 2 جگہ کا بگڑا ہوا پھر کہیں بنے گا ہی نہیں. حضرت نے فرمایا ایک مدرسے میں جا کر کوئی بگڑ جائے اور ایک کوئی اللہ کے راستے میں جا کر بگڑ جائے. لوگ بگڑتے ہیں. ابھی ہم لوگ بنگلہ دیش اجتماع میں گئے تھے، ایک ساتھی وہاں ملے کہ میں جماعت میں چل رہا ہوں اور میرا یہ فلاں چلہ چل رہا ہے، لیکن اس چلے میں سگریٹ کی عادت مجھے پڑ گئی. سگریٹ کی عادت پڑ گئی. میں نے اس کو پوچھا کیسے عادت پڑ گئی؟ کہ میرے ساتھ دوستی جماعت میں ایسے ساتھیوں سے ہو گئے سگریٹ کی عادت پڑ گئی اور فلاں چیز تھی. اس سے اگلے 2 چلوں میں اس کی عادت مجھے نہیں تھی. تو لوگ بندی بھی ہے اور نگرانی نہ کریں تو بگڑ بھی جاتے ہیں. اور نہ فرمائیں اگر اچھا نکلنا ہوا تو آدمی کو بزرگ بنا دے گا، اور نکلنے میں خرابی آ گئی تو پھر ایسا بگڑے گا کہ تو جیسے خروج میں اچھی چیز اثر کرتی ہے، ایسے واپسی کے بعد جو ہم مقامی اپنی محنت کرتے ہیں اس میں بھی اگر اچھی محنت ہوتی ہے تو اچھی محنت آدمی کو سنبھال دیتی ہے، گھر سنبھل جاتا ہے، محلے سنبھل جاتے ہیں، فضا بن جاتی ہے. اور اگر وہ محنت اچھی نہ ہو یا اتنی نہ ہو جتنی ہونی ہے تو پھر اس کے اثرات ہوگا. اس لیے یہ کاروباری کا ایک عمل ہوتا ہے. یہ رسمی چیز نہیں ہے، یہ ہم سب کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھئی تو ہم سال سے کر رہے ہیں، سب کچھ ہمیں پتہ ہے. یہ چیز نہیں ہے. یہ نبیوں والی محنت ہے. اس میں 2 چیزیں مطلوب ہوتی ہے. ایک اتنی کی جائے جتنی ضرورت ہے، اور ایسی کی جائے جیسی کہی جا رہی ہے. تو نفع دے. بھائی ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہے تو 3 سے کم نہیں بنے گا، 4 پڑھنی پڑے گی. اور 4 پڑھی اور ایسی نہ پڑھے جیسی پڑھنے کو کہی گئی تو بھی کام نہیں ہوگا. تو پڑھنا بھی اچھا بنانا ہے اور اتنا پڑھنا ہے جتنا پڑھنا ہے، تو تھوڑے وقت میں کام ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو سال ہر سال تک پڑھتا رہا تو بھی سال ہر سال کا عمل بھی اسے نفع نہیں دے گا.
तो कैफियत और कमियत, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही करने को हमसे कहा जा रहा है। अरे भाई यहाँ पानी है, यहाँ पानी 100 फीट पर है, एक आदमी ने खोदना शुरू किया, खोदते खोदते 99 तक चला गया, 99 फीट तक पानी नहीं मिला, और वहाँ पानी कितने पर है? तो उसने कहा मैंने तो 99 खोद चुका, पानी नहीं आया, तो आप क्या कहोगे? अरे बोलो भाई, क्या बोलोगे आप? अभी 1 फुट खोदना वो पूरा करो, ऐसा ही कहोगे? तो उसने जितनी मिकदार है वो पूरी नहीं की। अच्छा, एक आदमी ने मिकदार पूरी की, यहाँ 10 फीट खोदा, यहाँ 10 फीट खोदा, यहाँ 10 फीट, 10 फीट के 10 गड्ढे बना दिए। इसने कितना खोदा? अरे बोलो भाई, 100। और पानी कितने पर आ रहा था? तो इसने कितना खोदा? पानी आ जाएगा। क्यों जी? तो उसकी तरतीब बदल गई। हमसे कमियत भी बदलूगे और कैफियत भी अच्छी हो और उसकी कमियत भी अच्छी हो। हमारे जो अमाल हैं उन अमाल का यहाँ बार बार गुजारिश इसलिए होता है कि हमारी मस्जिदों में जितना हो रहा है उसमें भी इजाफा हो और जो हो रहा है उसकी कैफियत में भी अच्छा इजाफा हो। तो इसके लिए यहाँ साथियों को बुलाकर एक एक अमल को पूछा जाता है। किसी को मस्जिद और जमात का पूछ लिया, किसी को 2.5 घंटे का पूछ लिया, तो हम इसको तवज्जो से सुनें। ये ना समझें कि ये तो हम 16 साल से करते हुए आए, हम जानते हैं, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमको समझाया सुझाया, लेकिन हम और अच्छा करने वाला बने। शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, वो ये सोच चाहता है कि भाई कर तो रहे हैं लेकिन करते करते ये सुस्त हो जाए या ऐसा ना करें जैसा करना चाहिए, ताकि इस अमल का उसको नफ़ा ना हो। इसलिए हमें इसी जहन से सुनना है कि हमें ऐसे कर रहे हैं जैसे हमारे बड़े हमको कर रहे हैं, समझाते हैं, ताकि थोड़े वक्त में ये करके हम अच्छा नफ़ा उठाने वाले बने। सब नियत करते हैं, सोएंगे तो नहीं, सोएंगे भी नहीं, बातें भी नहीं करेंगे। किसी मस्जिद वालों से कोई बात पूछी जाएगी तो ये तो एक आध मस्जिद में बुलाएंगे, सारी मस्जिदों को तो बुला भी नहीं सकते, तो किसी मस्जिद को बुला लेंगे। तो वो सब मस्जिद वाले ऐसा समझे कि हमसे पूछा जा रहा है, और जो बात किसी को कही जाए वो सब अपनी मस्जिद पर गौर करें कि हमारे वहाँ ये कैसे हो रहा है, तो इंशाल्लाह हमारे लिए नफ़ा होगा। करेंगे इंशाल्लाह। भाई आप आ जाए। कहाँ से आप? दियोदर। माशाल्लाह। आपके मस्जिद में कितनी मस्जिद है? आपके गांव में कितनी मस्जिद है? हमारे गांव में 3। आपके मस्जिद में कितने मकान हैं? 190। 190। 4 महीने वाले? 4 महीने वाले 43। और साल वाले मौलवी साहब और उलमा? साल वाले उलमा 4 महीने वाले, साल वाले हैं? साल वाले एक उलमा है हमारे में। और 4 महीने वाले? 4 महीने वाले 6। माशाल्लाह। और चिल्ले वाले लोग? चिल्ले वाले उलमा आपके मस्जिद में? हाँ, हमारी मस्जिद में 5। और आपके मस्जिद में 4 महीने वाले 43 है। माशाल्लाह। आपकी मस्जिद में मशवरा कब होता है? सुबह फजर बाद होता है। और कितने लोग उसमें बैठते हैं? ज़रा सुनाओ मशवरा आप लोग कैसे करते हो, और आपके मस्जिद के 2.5 घंटे की मेहनत कैसे होती है, दोनों ज़रा सुना दो। फजर के बाद होता है। हाँ, फजर के बाद मशवरा होता है। हाँ, उसमें 30 साथी बैठते हैं। माशाल्लाह। तो 6 हमारी जोड़ियाँ बनी हुई हैं मुलाकात की। माशाल्लाह। कारगुजारी लेते हैं हम। हमारे 3 हल्के हैं छोटे छोटे, हल्के वाइज कारगुजारी। हल्का नंबर 1 इसकी जोड़ी 1 है, 2 नंबर की 3 जोड़ियाँ, और हल्का नंबर 3 की 2 जोड़ी है। कुल मिला के 6 जोड़ी की कारगुजारी होती है। कुल मकान 150 हुए? 190 मकान। 190 मकान। 190 मकानों में 6 जोड़ियाँ काम करती हैं। 6 जोड़ियाँ। एक जोड़ी में कितने आदमी हो गए? 5 आदमी। 5 आदमी, 6 पंचा 30। तो एक जोड़ी के ज़मीन कितने मकान होते हैं? एक जोड़ी के जिम में हमने हल्के वाइज तकसीम किए हैं 20, 15, 20 ज़्यादा आएंगे। 15-20 करोगे तो 5 जोड़ियों के 100 मकान होंगे। तो वो मकान कौन करेगा? इसमें मकान ऐसे हैं ना कि वहाँ मुलाकात में नहीं जा सकते, निकलना होता है लेकिन मुलाकात में नहीं जा सकते। अच्छा, गैर मानूस है। तो गैर मानूस नए हैं या पुराने हैं? पहले से वहाँ रहते हैं? नहीं, पहले से। अच्छा, पहले से रहते हैं। एक मस्जिद वो है, 2 मस्जिद दावत की बस्ती में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो सब जगह होता है। तो वो 90 मकान आपकी अतराफ में है ना? हाँ,
लेकिन आपके कहने के मुताबिक वो गैर मानूस है और पहले से हाँ है ना? अच्छा, तो उसको आपने मुलाकातों में तकसीम नहीं किया, बराबर? मुलाकातों में आते हैं लेकिन मुलाकात नहीं होती। आपने जो फरमाया जब हमने 15-20 मकान एक जोड़ी को दिए तो वो या 5 जोड़ियों को 100 मकान हो गए, तो फिर ये 90 मकान बजाय मुलाकातों में तकसीम हुए। हाँ वैसे तो तकसीम कर लिया हमने हल्के वाइज। अच्छा। जैसे हमारा हल्का नंबर 1 में 61 मकान है, 2 नंबर में 47। तो आप वो क्यों नहीं बोलते पहले से? आपने जब गिनाया कि आपके के मकान जोड़ी के सामने कितने मकान, तो जब हल्का 1 के 61 है तो आपको 61 बोलना चाहिए या 20 बोलना चाहिए? हाँ 1 नंबर 61 मकान है तो 61 है, लेकिन इसमें मुलाकात में वो तो अभी मैं बाद में पूछूंगा आपसे, पहले तो ये कि तकसीम कितने हुए? 61। हाँ तो जो 190 मकान आपने तकसीम कर दिए हैं, यही हुआ? हाँ माशाल्लाह, अल्लाह बहुत बहुत दुआ करते हैं, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो फिर क्या करते हो मशवरे में? आपके मकान तकसीम हो गए, फिर कारगुजारी लेते हैं और कारगुजारी में मुलाकात हुई कि नहीं, अगर नहीं हुई तो फिर नहीं क्या हो जाए, इसको तरगीब देते हैं। फिर थोड़ी कमी बेसी रहती है कारगुजारी में। सुबह में 6 जोड़ियाँ बनी हैं, इसमें कभी 4 भी होती, कभी 5 भी होती, कभी 6 भी हो जाती। थोड़ी तरकीब देते हैं, फिर हल्कों में बिठाते हैं। मोहल्ले की जमात बैठ जाती है मोहल्ले की जमात बैठ जाती मशवरे के बाद? है। मशवरे की बात मशवरा कितनी देर होता है? 10 मिनट। माशा। और फिर जो मोहल्ले की जोड़ियाँ बैठती है वो कितनी मिनट बैठती है? हाँ वो भी 5-7 मिनट बैठ जाता है। अच्छा, उसमें क्या करते हैं? हाँ उसमें जो तकसीम किए हुए मकान, उसमें घर घर की मुलाकात, आप किसके घर का नंबर है तो इत्तला देना है, कौन से वक्त में, मगरिब में, इशा में, काबू में, आसम का, तो इसी उन्वान से सुबह में तय हो जाता है। बहुत अच्छा। तो गोया आज जो मुलाकात करनी है उसकी मुलाकात का क्या निज़ाम रहे वो चीज़ सोचते हो आप? बहुत अच्छे। इस निज़ाम से जब आप मुलाकातों में जाते हो हाँ तो फिर मुलाकात कैसे करते हो? फिर हमने तय कर लिया मगरिब बाद और इशा बाद हमारी जमात होती है मुलाकात की, और एक जमात फजर बाद है, इशराक के बाद। तो इस उन्वान से हम मगरिब बाद जाते हैं, या फिर ईशा बाद बोलते हैं तो ईशा बाद जाते हैं, और फिर आधा घंटा मुलाकात करते हैं। घर वाले जो वक्त देते हैं उस वक्त करते हो? बहुत अच्छा। अगर वो ईशा बाद बोलते हैं तो ईशा बाद ठीक। मुलाकात घर में बैठ कर करते हैं? बैठ के करते हैं। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। और क्या बात करते हो? बस ईमान आखिरत की माशाल्लाह, बात करते हैं। 6 नंबर की बात करते 6 हैं। नंबर की। वाह भाई वाह। और फिर आखिर में तश्कील करते हैं? और फिर तश्कील चारने कब लगे थे, क्या तरतीब है 4 महीने की, तश्कील करते हैं। साल की तरतीब है जो इनकी बराबर है कि नहीं, बहुत अच्छी मुलाकात। फिर 3 दिन में घर की तालीम। बहुत अच्छा। घर की तालीम की, बच्चों की दीनी फिक्र की, वो सब बात आप करते हैं ना? जो कमी पेशी होती है 2.5 घंटे वगैरह, पहले गज की पाबंदी होती है, तो दूसरी गज की पाबंदी नहीं होती, तो ये भी जवान में होता है, तो जब आपका पहला गज होता है दूसरा नहीं होता। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। और आखिर में तश्कील कर लेते हैं। फिर तश्कील करते हैं। तो इस तरतीब पर आप मुलाकातें करते हैं तो आपके मकान कितने दिन में पूरे हो जाते हैं? वैसे तो तरतीब से करते हैं ना तो महीना भी हो जाता है पूरे करते करते, ताकि बीच में उन्वान आ जाता है, कोई 3 दिन का, कोई किसी दूसरे गश्त में, पहले गश्त में मुलाकात कभी नहीं भी होती, जब पहला गश्त होता है दूसरा गश्त होता है, 5 गुस्सा होता है, उसी दिन छूट भी जाता है। अच्छा, तो 4 दिन मिलते हैं। 4 दिन। और सुबह में तो रोजाना होती है, एक जमात तो बराबर काम करती है। वो तो अपने मोहल्ले में करती हो? नहीं, मैं तो अभी आपके घर में पूछ रहा हूँ। आपके जो मकान है 61 मकान मसलन आपके, 61 मकान में से आपके कहने के हिसाब से गैर मानूस कितने हैं उसमें? हाँ 61 में वैसे गैर मानुस है 10 मकान है। 10 मकान। तो आपके कहने के हिसाब से आप 50 मकान में बैठ कर बात करते हैं, 10 मकान आपकी गुजर जाते हैं, हाँ। यही हुआ? हाँ तो उन 50 मकानों में आप रोज़ाना कितना वक्त देते हैं आपकी जमात? रोजाना एक जमात का हमारे मगरिब से अभी तो आपकी जमात की हाँ कारगुजारी मैं मगरिब से ईशा मगरिब से इशा, तो आप 2.5 घंटे पूरे नहीं लगाते हैं? पूरे लगाते भाई, वो कब लगाते हो? सुबह में भी लगाते। अच्छा,
वाह भाई वाह, माशाल्लाह, अल्लाह बहुत इस्तकामत दे और बहुत बहुत कबूल फरमाए। तो आप एक घर के आधा घंटा मुलाकात में लेते हो, तो वो 2.5 घंटे में कितने मकान हो जाए? इससे 2.5 घंटे में तो 5 मकान हो जाते हैं। हाँ, फिर आप जो कह रहे हैं कि हमें ये मकानों को करने में महीना लग जाता है, तो अगर रोज़ाना 2 मकान करें तो 25 दिन, और 3 मकान करें तो 15 तारीख 30 तारीख, और 4 मकान करें तो आपको महीना क्यों लग जाता है? इसमें हमारा जो शाम का जो नज़्म है ना, वो तो बराबर है ना, एरिया वाइज तय है, लेकिन हमारी सुबह की जो मुलाकात है ना, उसमें साथी है ना, एक ही जमात के नहीं, वो अलग अलग है। जैसे एक आप हो गए, एक दूसरे का एक साथी हो गए, फिर टोला होकर एक साथ जाएंगे। हल्का नंबर 3 का मैं एक नंबर का एक साथी, हाँ, तो जहाँ तकाजा होता है ना, उसी उन्वान से मुलाकात करते हैं। अच्छा, सुबह की मुलाकात मस्जिद के तकादे पर और शाम की मुलाकात घर घर की मुलाकात, ये तकसीम किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शाम की मुलाकात सुबह में आप कितना देते हैं? सुबह में 9 बजे 9 बजे से, और शाम को मगरिब से इशा तक। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी जो 2.5 घंटे के एरिया आपको दिया है, उसमें से कभी आपने 3 दिन की जमात अपनी बनाई? बनाई। उस एरिया में से बनाई? हाँ, माशाल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए। आपकी मस्जिद में कितने साथी हैं जो जमात लेकर जा सकते हैं? हमारी मस्जिद में 10 साथी ऐसे हैं जो जमात लेके जा सकते हैं। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। तो उसमें से साल की कितनी जमात बनती है आपके वहाँ से? साल की 4 जमातें बन जाती हैं, चीज़ें हाँ, 5 भी बन जाती हैं। 4 या 5 बन जाते हैं। माशाल्लाह, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात। तो ये जो दूसरे 5 रह जाते हैं, उनका क्या होता है? आपके पास 10 आदमी वो हैं जो जमात लेकर जा सकते हैं, उनमें 5 के साथ तो जमात बनती है, दूसरे 5 का क्या होता है? जैसे मेरी जमा की तो मेरे साथ एक जो जमात ले जाने वाला है ना, वो भी जुड़ जाता है। अच्छा, हाँ, आप उनको जोड़ लेते हो? नहीं जोड़ते तो नहीं है, फिर? लेकिन क्या है, इनकी तरतीब होती है, जैसे निकलने का वक्त होता है, इसी उम्र से 2-2 साल में चले जाते हैं। आप जैसे अगस्त में चले जाते हैं, सामान में चले नहीं, तो जाते एक साथ दो जमातों की एक साथ तश्कील नहीं होती। हैं। तस्कील तो होती है, 2 जमात के डिज़ाइन करते हैं। फिर पहले से ही ध्यान होता है कि इनके साथ जाना है, तो एक में कमजोरी हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा। कभी 2 जमात भी बन जाती है, ऐसा भी हुआ। अच्छा जैसे रमजान साहब 2 जमात भी हो जाती है, तो दोनों अलग लेके जाते हैं। अच्छा, मोहल्ले में कोई बीमार वगैरह हो जाए तो उनकी आदत में भी आप जाते होंगे? तो जाते हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। जनाजा हो जाए उसमें भी जाते होंगे? वो भी पहुंच जाते हैं। और कोई साथी जमातों में गए हैं, उनके घर की खबरगिरी भी आप लेते होंगे? वो वाह जमात में वाह रहते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। अल्लाह के खैर दे। सारी जमातें इस तरह से मुलाकातें पूरी कर लेती हैं? नहीं, कमी वैसी रहती हैं, ताकि हमारी 6 जोड़ियाँ बनी हैं, इसमें 4 तो बराबर चलती है। अच्छा एक तो आगे पीछे रहती है। अच्छा अच्छा। ये जो 10 मकान आपके गली में गैर मानूस आप कह रहे हैं, वो गैर मानूस मकान उनके वहाँ गमी खुशी है तो आप लोग जाते हैं? आ जाते हैं। गमी खुशी में तो आपको रिस्पॉन्स करते हैं? हाँ, वो तो वैसे तो दावत देते हैं, बैठते हैं, चाय पानी अच्छा। होता है। वाह ऐसे वाह, तो फिर गैर मानूस क्या रह गया? वो बात लेके जाते हैं, तो ये बात नहीं, ये बात नहीं। नहीं, आप जैसे गश्त में भी जाते हैं, हम बुलाते भी हैं। वो बात भी सुनते हैं? हाँ? नहीं, वो बात नहीं सुनते? अच्छा, मतलब तबलीग के उन्वान पर बात मत करो, बाकी जो बात करनी हो करो, यूँ? जैसे मौका होता है वो दावत भी देते हैं, लेकिन अच्छा, आपके गांव में आप कितनी बिरादरियाँ रहती है? बिरादरियाँ तो 6-7 बिरादरी। 6-7 बिरादरी। वो सब मुतवज्जे है या चंद बिरादरी होती है? चंद बिरादरी। चंद बिरादरी मुतवज्जे। दूसरी बिरादरी के पास जाने में कमी है या फिर उनके मुतवज्जे होने में कमी है? नहीं, मुतवज्जे होने में भी कमी है। आप उनके पास जाते हो? हाँ, हम जाते हैं। हमारी जो दूसरे गज की तरतीब है ना, बराबर मिली जुली हुई है उससे, अच्छा। आसपास में, और वहीं गज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा गज अल्हम्दुलिल्लाह होता है जम के, मगरिब से शाम 6 जगह होता है हमारी बस्ती में। दूसरा गश्त? हाँ, तो एक एक गश्त में कितने लोग जाते हैं फिर? हमारी तरतीब बनी है 6-7 8 साथी। एक थिएटर। हाँ, माशाल्लाह। तो आपने दूसरे गश्त के बाद छेड़ दिया, तो उसी को अपने आगे भी पूछ लो। तो आप जब दूसरे गश्त में 5-6 साथी 7 साथी जाते हो, तो कितनी जगह, कितनी देर, कितने वक्त के लिए एक जगह पर आप गश्त करते हो? वैसे मगरिब से शाम देते हैं, और
नहीं, गश्त में जो जाते हो मगरिब से इशा हाँ, गश्त कर लेते हो, हाँ, और गश्त के बाद इशा बाद बात कर लेते हो। इशाबाद बात कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो बस्तियाँ आपने वो छांटी होगी जो बंजर होगी, नहीं होगी, ऐसी छांटी है या फिर छाटी वो ऐसी बस्ती होगी कि जहाँ कुछ काम नहीं होता, ऐसी बस्ती, ऐसे ऐसे मोहल्ले लिए जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे गांव के ही ऐसे एरिया को हमने मुंतखब किया है, 6 एरिया कि जहाँ कोई काम की शक्ल नहीं है, ऐसा ही आप कह रहे हैं? काम की शक्ल तो जो हमारी बंजर बस्ती है ना, तो 1-2 जगह है, 2 जगह वहाँ नहीं जा, बाकी तो जा सकते हैं। अच्छा, 2 ही जगह ऐसी है। तो आप ये जो दूसरा गश्त करते हो वो कौन सा एरिया होते हैं? वो हमारा जो सेंटर एरिया है ना, वहाँ मस्जिद वगैरह नहीं है? ना, मस्जिद नहीं है, है लेकिन दूर है। दूर। अच्छा, वो एरिया गैर मानूस मोहल्ला है या मानूस मोहल्ला है? नहीं गए वहाँ। गैर मानूस मोहल्ला। फिर वहाँ आप कैसे दूसरा गश्त करते हो? ऐसे दूसरा अगस्त वहाँ हम बिछोना है ना, हमारा मीडिया वो बिछा देते हो? बिछा देते हैं। हाँ। फिर तो वहाँ 6-7-8 शादी हो जाते हैं तो हम तय कर लेते हैं पहले अगस्त, हाँ। फिर जमात बनाते हैं। कभी साथी ज़्यादा हो जाते 2 बना लेते, 3-4 हम्म, तो काम ज़्यादा हो जाता है, कभी एक ही बनाते हैं, तो हम नगद ले आते हैं। नकद लाते हैं। फिर नमाज कहाँ पढ़ते हो ईशा की? दरमियानी बात वही होती है, ईशा की नमाज अगर बराबर है कि नहीं, अच्छी जगह है तो पढ़ लेते हैं वहाँ। फिर ईशा बाद फिर करते हो? नहीं, ईशा बाद फिर बात नहीं होती, फिर वही नकद लाकर उसी वक्त बात कर निपटा लेते हो? लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह से एक जगह पर आप कितने वक्त तक के लिए गश्त करते हो? मुस्तकिल अभी तो 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 ज़्यादा हो महीने गया, ज़्यादा हो गया है। फिर भी? काबू में नहीं आता, ताकि साथियों की तश्कील भी करते हैं, निकलने की बात भी होती है, लेकिन निकलना अभी बहुत कम हो रहा है। तो तसलसल से फिर कितना, कब तक ऊपर मेहनत लगातार करते रहते हो? लगातार तो 6 महीने, साल, 2 साल, 12 महीने भी 12 महीने तक? कोई ऐसी बस्ती है ये वो 6 जगहों पर के ये गश्त वालों के ज़रिए से वहाँ कोई अमल शुरू हुए हों? पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन माशाल्लाह गश्त की तसलसल से मेहनत हुई तो वहाँ कुछ माहौल बदला हो, कुछ अफराद वहाँ से अल्लाह के रास्ते में गए हों, या किसी मकान में कोई अमल शुरू हो चुका हो, वैसा हुआ कुछ इन 6 जगहों में से कहीं? वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह गश्त की बरकत से वहाँ से हमको साथी मिले, साथी लोग जगहों पर से मिले? 3-4 जगह। माशाल्लाह। आप मैं भी वहाँ, इज्तिमा में आया हूँ। माशाल्लाह, बड़ी बात है, बहुत बड़ी काम बात बहुत है, करते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप वहाँ गश्त के अलावा हफ्ते भर में भी कोई मेहनत करते हो वहाँ हाँ, उस जाते एरिया हैं। में? क्या मेहनत करते हो? ताकि जैसे मेरा हल्का है वो, इसमें हमने 2 जमातें बनाई। एक जमात है ना, वो जो हमारी मानू जगह है, एक जमात हमारी मुस्तकिल हो जाए। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। तो रोज़ाना आपके उस जी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही। भाई ज़रा आप माइक के सामने रखकर बोलेंगे, ठीक है? आप थोड़े से कान खड़े कर दें, है ना? आदमी सोते हैं तो पहले कान सोते हैं, और उठता है तो पहले कान उठते हैं। आवाज़ हुई, कान में आवाज़ आई, फिर आँख खुलती है। सोता है तो पहले, जब तक आवाज़ रहती है नींद नहीं होती है, तो पहले कान सोते हैं। ऐसे गफलत होती है, पहले कान की गफलत होती है, तो कान खड़े करने पड़ते हैं ना। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो 6 की 6 बस्तियों में तसलसल से सारे हजरत इसी तरह जोड़ियाँ बनाकर भेजते हैं, या आपके खाली जोड़ी इस तरह भेजती है? नहीं, सारी जोड़ियाँ जोड़ियाँ जाती हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, अल्लाह बहुत मुबारक भारत दे। में जाती तो आपका तो इतना अच्छी फिजा बन गई कि ये गैर मानूस जो आप कह रहे हैं, वहाँ से आपको अफराद भी मिलने लगे, वो दूसरी बरातियों के लोग भी आने लगे, तो फिर अब इसको गैर मानूस हम कहेंगे क्या रहे आपकी? नहीं, वैसे इतने गैर मानूस नहीं रहे पहले के मुकाबले में। अच्छा, अब तो अच्छा है। आपकी बात सुनते हैं, बिठाते हैं, इकराम करते हैं। बस बात इतनी है कि तबलीग का नाम मत इस्तेमाल करो, बाकी सब कुछ करो, ये हुआ ना? अच्छी बात है, अल्लाह जज़ाए खैर। माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई, बहुत अच्छी माशाल्लाह भाई ने कारगुजारी सुनाई। हमारी हजरात भी यही फरमाते हैं कि हमारी मस्जिद में बस कोशिश इसकी करनी है कि इनके वहाँ एक अच्छा अमला वक्त लगाया हुआ है। कोशिश करनी है कि हमारी मस्जिद के फिक्रों में हमारी मस्जिद का हर मुसल्ली शरीक, इसकी कोशिश करनी है। और ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। मैं इनसे पूछना भूल गया कि आपका इतना अमला है, बाकी अमले की आप क्या फिक्र करते हो, मैं पूछना भूल गया। बाकी कम से कम वक्त लगाया हुआ अमला तो रोज़ाना हमारी फिक्रों में
किस तरह शरीक हो उसको ज़रूर हम सोचें, क्योंकि आदमी हम अपने मोहल्ले में जो चीज़ चलाना चाहते हैं उसमें उस फिक्र में अगर हमारे मस्जिद का अमला हमारे साथ शरीक फिक्र है तो हमारे अमल में भी शरीक हो जाएगा। हम एक बात चलाना चाहते हैं लेकिन मोहल्ले वाले उस फिक्र में हमारे शरीक नहीं हैं तो फिर मोहल्ले से हमें ताउन नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप? एक घर में कोई आदमी काम करना चाहता है, उस घर जो होता है वो तीन लोगों से बना हुआ एक घर होता है, माँ बाप और औलाद। सही गलत? अरे बोलो तो सही भाई। कोई बात घर में करनी है तो अगर मियाँ बीवी में भेदभाव हो जाए तो वो काम घर में आसानी से हो जाएगा कि दोनों का एक फिक्र होना जरूरी। माँ बाप एक हो गए, बच्चों का विरोध हो गया, अरे बोलो हो जाएगा काम? हो सकता है होने पर पड़े लेकिन कुछ ना कुछ अगोड़े रहेगी, गुचवण रहेगी। जब तक घर के सारे अफराद एक फिक्र नहीं हो जाते तब तक घर में कोई चीज़ नहीं होती। तो जो चीज़ हम अपने मोहल्ले में चलाना चाहते हैं अगर उस मोहल्ले के अफराद हमारी फिक्र में शरीक नहीं हुए तो वो चीज़ फिर मोहल्ले में कैसे चल जाएगी। इसलिए आप देखो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में जो फिक्र हुजूर की थी उस फिक्र में मदीने के हर फर्द को शरीक कर लिया। एक एक आदमी को, करीब का रहने वाला, दूर का रहने वाला, सबको शरीक किया और मर्दों के जरिए से उनकी मस्तूरात को शरीक किया। उस फिक्र में इतनी मस्तूरात शरीक हो गई, इतनी शरीक हो गई कि उसमें उनकी तरफ से इतना बड़ा ताउन मिला। मेहमान को घर में लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हुजूर के मेहमान को लाया हूँ, कोई चीज़ बचा कर ना रखना। तो घर वाली क्या कहने लगी? घर वाली कहने लगी कि जी घर में बच्चों के लिए बस थोड़ा सा है, बाकी कुछ नहीं है। आदमी अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों की नहीं बर्दाश्त कर पाता। बच्चों की, आप उस औरत का ताउन कितना मिला, बच्चों को भूखे सुला दिया। तो ये बड़ी बात है। हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी फिक्र में मदीने के एक एक घर को शरीक किया था, बच्चे को शरीक किया था। इसलिए आप देखें जब मैदान में जाना हुआ, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, छोटे बच्चे जाते हैं। हमारे मैदान में बहुत सारे बच्चे आए हैं लेकिन वो खेल कूद करते हैं और वहाँ छोटे छोटे बच्चे उस फिक्र में शरीक है। हजरत अकवा का वाक़या आपने पढ़ा है फ़ज़ाइल अमाल में? जी। वो कितने साल के थे? 75 80 कितने साल के थे? अरे बोलो 12 साल के। सलमा इब्न अकवा। आपने मुआज़ और मुआवज़ का वाक़या पढ़ा है? वो कितने साल के थे? वो भी छोटे छोटे बच्चे और पैरों पर खड़े हो रहे हैं। ये कैसे हो जाते होंगे? तो उनको उस फिक्र में शरीक किया गया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अफराद जहाँ गए उन्होंने उस इलाके वालों को भी ऐसे ही शरीक किया। जब मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्के से मदीना गए थे तो मदीना मुनव्वरा के एक आदमी हैं पूरे मदीने वालों को मुतफक्किर किया। तो जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्के से मदीना गए तो सब इस्तिक़बाल में आए, तो वहाँ के बच्चे भी, अरे बोलो तो खरे, इस्तिक़बाल में आए और उन्होंने कसीदा पढ़ा था, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा। याद है आप लोगों को? ये छोटे छोटे बच्चों को कसीदा किसने सिखा दिया? कि वो मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फिक्रों में शरीक हो गए। उस फिक्र के में शरीक होने ने उनको बताया कि हुजूर कितनी शान वाले हैं। तो हमारी मस्जिद में हमारा ये हदफ हो कि हमारी मस्जिद के सारे मुसल्ली हमारी फिक्रों में शरीक हो। अब वो हम सब चाहते हैं भाई हो जाए, कोई ऐसा है जो नहीं चाहता, लेकिन हो नहीं पाता। हम ये कहते हैं भाई हम तो चाहते हैं मगर लोग आते नहीं। तो हम तो लोगों के लिए कहेंगे वो आते नहीं, हमसे ये पूछा जाएगा कि आप लाते कैसे हैं? हम उनको अपनी फिक्रों में शरीक कैसे करते हैं? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम जब मुलाकातों में जाएं तो जैसे सारी चीज़ों की बात करें, मस्जिद के मशवरे की भी उनसे बात करें। मस्जिद में मशवरे में शरीक होने की और सारे अमाल में शरीक होने की। अब बात की, अब मान लो मैंने इनकी मुलाकात की, आज इन्होंने नियत की, अब फजर की नमाज में वो आए हुए हैं। फजर की नमाज के बाद मैंने सलाम फेर दी। अब वो मैंने देखा कि वो साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने कल नियत की थी मशवरे में बैठने की। सलाम फेरने के बाद मैंने प्यार से उनके कंधे पर हाथ रख दिया। जी हाजी साहब खैरियत है, तबीयत ठीक है, अल्लाह को खुश रखे, सलामत रखे, कबूल फरमाए। माशाल्लाह कल हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे, आपने तय किया था बैठने का, देखो अभी मशवरे का अमल हो रहा है, तशरीफ ले। अब उन्होंने कल वादा किया था, मैंने रोकड़ी तश्कील कर ली। अगर मस्जिद व जमात में 30 साथी बैठते हैं
اور 30 کے 30 جیسے انہوں نے سنایا کارگزاری ہر جماعت میں ہمارے 5 ہے اور سارے ہی ملاقات میں جاتے ہیں. اگر سارے روزانہ اس طرح ملاقات میں جائیں اور روزانہ اس گھر والے کی اس طرح بات کریں اور جتنے تیار ہو رہے ہیں اگر سارے کا سارے روزانہ ان کو شریک کرنے کی تشکیل تھوڑی سی کندھے پر ہاتھ رکھ دیں تو سچ بتاؤ مجمع بڑھے گا یا جتنا ہے اتنا ہی رہے گا؟ ذرا زور سے بولو. ہم یہ کرتے ہیں؟ ارے بولو ہم کرتے ہیں تو پھر لوگ کیسے شریک ہو جائیں گے؟ کاش طے کر لو کہ انشاءاللہ آج سے سب کو شریک کرنے کے لیے ہم تدبیر کریں گے. کرو گے؟ تو اس طرح ایک تو سب سے پہلی کوشش. دوسرا بھائی نے ماشاءاللہ اچھی بات سنائی کہ ہماری جماعت ملاقاتوں میں جو جا رہی ہے اس میں ہم سارے ساتھیوں کو استعمال کرتے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے 30 کے 30 جو بیٹھنے والے ہیں ان کے ذمہ کام دے دیا. ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس مشورے میں جتنے بیٹھے ہیں ان کو کسی نہ کسی جماعت میں جوڑ دیں. اندر لٹکتا ان کو نہ رہنے دیں. بھائی مان لو کس محلے کا آدمی آیا ہے اس محلے کی جماعت کام کر رہے ہیں وہ محلے کی جماعت ان کو اپنے ساتھ محنت میں شریک کر لیں. یہ محلے کا آیا اس کو اپنی محنت میں شریک کر لیں. یہ محلے کا آیا اس کو اپنی محنت میں شریک کر لیں تو وہ آیا بھی اور کام میں بھی پڑ جائے گا. اور اگر ہم نے اس کو کام اس کے ذمہ نہیں کیا اس کو شریک نہیں کیا 1-2-4 دن بیٹھے گا پھر اس کے بعد اس کے اندر اکتاہٹ آ جائے گی اور اکتاہٹ آ گئی تو پھر وہ آدمی خود ہی چلا جائے گا. ہم ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیں فکروں میں. آدمی بعض لوگ جب دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے میرے ذریعے سے ہو رہا ہے تو اس کے اندر عظمت بڑھ جاتی ہے. عظمت بڑھ جاتی ہے. تو ہم آنے والوں کے استعمال کی شکل سوچیں اور اس استعمال کی شکل میں ہمارے پاس کوئی نئی ایریا تو ہے نہیں. تو جو جس محلے کا ہے اس محلے میں اب جیسے بھائی نے سنا ہے کہ ہمارے ضمن میں 60 مکان ہیں 60 مکان اور 4-5 آدمی ہوتے ہیں. بھائی 6ٹھا آدمی آ گیا تو اس کو شریک کر لو. آدمی بڑھ گئے تو اس کی 2 جماعت بنا دو. 6 کی 3 کی 2 جماعتیں بن گئی. 60 مکان ہے اس کو 30 مکان میں تقسیم کر لو تو کام اور پائیدار اور مضبوط ہو جائے گا اور ساتھیوں کا استعمال بھی ہوگا. اس لیے ہم اس کی کوشش کریں. اب رہی بات بھائی نے جیسے سنایا کہ کچھ جماعتوں کی کارگزاری میں کمزوری ہوتی ہے. یہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. ہم اپنی ذات سے تو اس کی کوشش کریں کہ ہم کمزوری نہ کریں. ہم اپنی ذات سے تو اس کی کوشش کریں اس ذہن کے ساتھ کہ میں 24 گھنٹے میں اللہ رسول کی بات نہیں بولوں گا اللہ کے بندوں کے پاس نہیں جاؤں گا تو میری کیا کیفیت رہے گی. ہم اپنی ضرورت کی چیز سمجھ کر ہم تو کمزوری نہ کریں. باقی رہی دوسری بات دوسروں کے لیے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پابند بناؤ دوسروں کو ترغیب دو. لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. تو ہمارا یہ مجموعہ اگر یہ اپنی ذات سے مضبوط ہے تو ان کا وجود انشاءاللہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے. اکثر آپ یہاں کھیتی کے لوگ اچھے کھیتی سے واقف لوگ ہیں. آپ نے کسانوں کو دیکھا ہوگا کہ جب ہل چلانے کے لیے کوئی بیل کمزور پڑتا ہے تو اس کو کون سے بیل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں؟ ارے بولو بھائی مضبوط کے ساتھ. وہ مضبوط ہل بھی چلاتا ہے اور اس کمزور کو بھی لے کر چلتا ہے. بولو ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسے محلے میں اگر کوئی ساتھی کمزور پڑے ہیں ان کو مضبوط کے ساتھ جوڑ دیا تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ وہ مضبوط ہو جائیں گے. اس کی ہم کوشش کریں کہ ہمارے ساتھیوں کا یہ استعمال. اور بھائی نے ایک بہت اچھی بات سنائی کہ ہمارے وہ بڑے مشورے کے بعد ہم فوراً محلے وائز جماعتیں بیٹھ جاتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہر مسجد میں مسجد اور جماعت کے مشورے کے بعد محلے وائز جو جماعتیں بنی وہ بیٹھیں 2 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے اور بیٹھ کر یہ سوچیں کہ آج ہمیں کن سے ملنا ہے آج کون سے مکان کی باری ہے وہ کس وقت ملیں گے اس کا مشورہ کرنا. بھائی اس پورے ضلع کے ساری مسجدیں اس طرح کرتی ہیں؟ ارے بھائی ساری مسجدیں اس طرح بیٹھتی ہے؟ کون کون مسجد بیٹھتی ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اچھا ماشاءاللہ اکثر مسجدیں بیٹھتی ہے. محلے وائز ضرور بیٹھیں. الحمدللہ یہ عمل آپ کے ضلع میں بھائی جن مسجدوں میں کمزوری ہے تو اس کے ضرور فکر کریں. باقی آگے کی جو بات دیکھیے آپ نے سنا بھائی کے ذریعے سے بھائی نے فرمایا کہ الحمدللہ وہ کسی نہ کسی درجے میں مہینے تک بھی پہنچ جاتے ہیں. ہمارے بزرگ تھے میاں جو محراب رحمۃ اللہ علیہ وہ بات فرماتے تھے کہ ملاقاتوں کا ایسا نظام بناؤ کہ ہر 15 دن میں ملاقات 100% پوری ہو جائے. کتنے دن میں بولو زور سے ذرا بولو ہونے والوں کی نیند تو چلی جائے. کتنے دن میں؟ اور فرماتے تھے بھائی مسلمان 15 دن تک پتہ نہیں کہاں کہاں کی کیا کیا باتیں سنتا ہے. اب 15 دن کے بعد بھی اگر ہم اس کو اللہ رسول کی بات نہیں سنائیں گے بیچارے کا کیا حل بنے گا؟ تو ہم کوشش اس کی کریں کہ ہر 15 دن میں ہماری 100% ملاقات ہو جائے. 100%. اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے. ایک ملاقات کرنے والا عملہ ہو تو ملاقاتیں ہوگی اور وہ عملہ وقت دے تو ملاقاتیں ہوگی. عملہ ہے اور ملاقاتیں نہیں دے رہا ہے
या अमला ही नहीं है, तो अमला भी बनाना है और उस अमले को अमल वाला भी बनाना है। भाई ने अच्छी कारदारी सुनाई कि हम जिसके मुलाकात में जाते हैं, अगर वो एक काम करता होता है बाकी के अमल की उसको तरगीब देते हैं, और अगर 2-3 करता होता है, चौथा 5वां छोटा है तो उसको फिक्र दिलाते हैं, तो उससे 5 काम वाले 5 काम वाले बन जाते हैं, 5 काम वाले। और जिस मकान में कुछ भी नहीं है उनको बुरी बात करते हैं। अक्सर हमारी मुलाकातों में एक ज़ौफ़ ये हो जाता है कि हम मुलाकात में जाते हैं तो हमारी मस्जिद में एक तकाजा होता है चिल्ले की जमात का, 4 महीने की जमात का, वो हम पर ऐसा सवार होता है जिसके पास हम मिलने जाते हैं तो उसको कहते हैं भाई खैरियत, तबीयत ठीक, भाई वो मस्जिद में 4 महीने की जमात बन रही है ना, उसमें आपके लिए भी सोचा है, क्या राय है? अरे बोलो अक्सर ऐसा हो जाता है, नहीं हो जाता? अरे कुछ हुआ तो करो। हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की बात हमारे एक बुजुर्ग सुनाते थे। हज़रत ये फरमाते थे कि तश्कील तो 6 नंबर में कौन से नंबर पर है? अरे बोलो 6ठे नंबर पर है, तो हम उसको कौन से नंबर पर बोलेंगे? हम उसको कौन से नंबर पर बोलते हैं? पहले नंबर पर। उससे पहले के 5 हमारे छूट जाते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे ऐसा ना करें, बल्कि पूरे दीन की उनसे बात करें, पूरे दीन की बात करें। पूरे दीन की जब उनसे बात की जाएगी फिर उस दीन की अज़मत उसके अंदर आएगी। और इस ज़माने में तो ख़ासकर ईमान की कीमत समझाने की ज़रूरत है। हमारा मॉडर्न बच्चे जो है ना, वो जिस माहौल में रह रहे हैं उनको इस्लाम में भी शक होने लगते हैं, शुबहत होने लगते हैं। ईमान, इस्लाम, उसकी अज़मत नहीं जानते। अगर ईमान और इस्लाम की अज़मत ज़िंदगियों में आ जाए तो आदमी गर्दन दे देता है, कभी दीन नहीं बेचेगा। और आदमी अगर ये नहीं होता तो एक मुसलमान है और इस्लाम पर शक करता है कि उसके अंदर ईमान समझाने की चीज़ है, ईमान वाले की कीमत समझाने की चीज़ है। ईमान क्या है वो समझाने की चीज़ है। अल्लाह के अहकामात कितनी बड़ी चीज़ है, वो नमाज कितनी बड़ी चीज़ है, जहल के साथ ज़िंदगी न गुजरे, ये समझाने की चीज़ है। तो हम इसको हल्के से न लें, ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, इसलिए हम पूरी बात उनसे करें। और माशाल्लाह भाई ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि हम घर में बैठकर बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरे ज़िले की सारी मस्जिदें घर में बैठकर बात करने की कोशिश करती होगी। भाई सारे लोग ऐसा करते हैं? कौन कौन ऐसा करते हैं, ज़रा हाथ उठाओ। माशाल्लाह। बाकी कुछ बाकी रह गए, वो भी नियत करो हम घर में बैठकर बात करने की कोशिश करें। क्यों? अगर आपने घर में बैठकर बात नहीं की, उस घर के उस आदमी से आपने खेत पर बात कर ली, दुकान पर बात कर ली, चौराहे पर कहीं बात कर ली, तो आपने उस एक आदमी से बात की, बराबर है कि नहीं? उस घर में उसके 4 बेटे हैं और कुल उस मकान के 10 मेंबर हैं। कितने मेंबर? अब आपने उस घर के एक आदमी से बात की तो अब उसके घर के कितने मेंबर छूट गए आपके हाथ से? अरे बोलो भाई। 9 मेंबर को आपने वो फिक्र नहीं दी जो आप मस्जिद से लेकर गए थे। अब आप उस घर से ये कहो कि भाई हम मस्जिद से जो फिक्र लेकर गए थे उसमें सबका सहकार मिले, तो आपको सबका सहकार मिलेगा? आपने बात कितने को सुनाई है और आप सहकार कितनों से चाहते हैं? 10 से। जब वो आपकी फिक्र में ही शरीक नहीं हुए तो उनसे सहकार कैसे मिलेगा? इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कोशिश करें कि घर में बैठकर बात करें। उसका फायदा क्या होता है पता है? जितने मर्द होंगे वो आपके सामने अगर बैठ जाएंगे, बच्चे जो होंगे वो आपसे, तो आपको सबसे बात करने का अच्छे से मौका मिल जाएगा। और हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कोशिश करो कि आवाज़ ज़रा बुलंद कर लो और 6 सिफात की बात। औरतों की आदत क्या होती है पता है? जब पराया कोई आदमी घर में आकर बात करता है तो उसकी आदत में है वो चुपके चुपके सुनती है कि कौन है, क्या बातें कर रहे हैं। बोला ये आदत औरतों में है कि नहीं? वो चुपके चुपके सुनेगी। तो आप जरा जोर से बात करोगे तो आपकी इस फिक्र में औरतें भी शरीक हो जाएगी। और अगर उन औरतों को तुम्हारी आवाज नहीं पहुंची तो उनकी दूसरी आदत क्या पता है? अभी तो तुम बात करके घर में से निकले भी नहीं होंगे कि वो अपने मर्दों से क्या पूछेंगे? क्या पूछते हैं? कौन थे, क्यों आए थे? बोला सही बात गलत? अरे बोलो बात सही है गलत? औरतें पूछती है नहीं पूछती? किसी का फोन आता है पूछते हैं कौन है तू? देखो क्या लेना देना है। अगर उसको चैन नहीं पड़ेगा वो फौरन पूछेगा कौन था। बोलो सही कह रहा हूँ गलत? तो उसको इतनी बेचैनी होती है। तो अगर वो पूछेगी तो आप जितनों ने बात मर्दों को जितनों को आपने बात सुनाई वो सब कहेंगे मस्जिद वाले थे, ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे। तो सब अपनी औरतों को अपनी फिक्रों में शरीक करेंगे। तो बोलो घर के जितने लोग हैं वो सब हमारी फिक्रों में शरीक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? घर में बैठकर बात करने का ये नफा होता है। फिर हमको क्या लगता है बाज़ मर्तबा यार हमारे घर में बिठाने का माहौल नहीं है। अच्छा भाई माहौल आसमान से टपकेगा, खेत में उगेगा, तो क्या करना पड़ेगा? माहौल तो
बनाना पड़ता है। हम उससे रजूआत तो करें, भाई हम मस्जिद से आए हैं, हम आपसे घर में बैठकर बात करना चाहते हैं, तो लोग कहने में हमें कुछ जाता है। अगर कोई उसको उज़र होगा तो उज़र बयान करेगा, हम अपने जहन से क्यों उज़र सोचें कि वहाँ ऐसा होगा वहाँ ऐसा होगा। बाज़ मरतबा कहते हैं उसके घर छोटा है, बहुत छोटा घर है। अच्छा, उस घर में कोई बेटे बेटी का रिश्ता लेकर आते हैं तो वो छोटे घर वाला उनको कहाँ बिठाता है? अरे बोलो, ऐसा कहता है मेरा घर बहुत छोटा है इसलिए बाहर से खड़े खड़े बात कर लो, तो वो उसके लिए गुंजाइश करता है, और हम अपने अकल से ये कहते हैं कि इस घर में बैठने की गुंजाइश नहीं है। तो शैतान ये चीज़ें समझाता है। हम कोशिश इसकी करें कि हमारे घरों में बैठकर बात करें, और दूसरी कोशिश करें कि 6 सिफात की बात करें, पूरी बात करें पूरे दीन की, उसमें बच्चों की दीनी तरबियत की बात करें। बच्चे कितनी बड़ी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हर आदमी की औलाद या तो उसके लिए जन्नत है या जहन्नम है। उसकी औलाद की उसको फिक्र दिलानी होगी, अपने मातहतों का अल्लाह सवाल करेंगे, इससे फिक्र दिलानी होगी, और उसके साथ साथ फिर आगे पूरे दीन की बात, तशकील की फिर बात कर लेंगे। तो इस तरह से अगर बात हुई तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे में सारी बातें उस घर में चल पड़ेगी, और कोशिश करें कि हर 15 दिन में पूरा हो जाए। और ये भाई अभी कह रहे थे कि कुछ मकान हमारे वो हैं जो गैर मानूस है, जो तबलीग के नाम पर बात नहीं सुनते, तो कोई बात नहीं, हम बगैर तबलीग के नाम के सुनाएंगे। हम कैसे सुनाएंगे? मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तशरीफ ले गए मेवात में, वो मस्जिद गैर मानूस थी, तो वहाँ मौलाना के चाहने वाले भी थे और दूसरे फिगर के लोग भी थे। तो जो चाहने वाले थे उन्होंने कहा मौलाना तशरीफ लाए हैं, इंशाल्लाह मौलाना बात करेंगे जुमा के बाद, ये ऐलान किया। खैर मुफ्ती महमूद साहब, बड़े मुफ्ती साहब साथ में थे। दूसरे जो लोग थे उन्होंने कहा बिल्कुल भी बयान नहीं होगा। ऐसा नमाज से पहले हंगामा हो गया, एक कह रहा है होगा और एक कह रहा है नहीं होगा। अब दोनों में इसी तरह बात चली, होते होते नमाज का वक्त, अब तशरीफ लाए, नमाज की सुन्नतें बांध दी, इतने में जुमा का टाइम हो गया, जुमा खड़ी हो गई, जुमा की सलाम फेरी, फिर उसने खड़े होकर कहा मौलाना है बयान होगा। दूसरा खड़ा होकर कहने लगा जी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मजमा खड़ा हो गया, क्या होता है देखें तमाशा। मौलाना ने सलाम फेरी और मुफ्ती साहब का हाथ पकड़ा जाने के लिए कि चलो बाहर जाएं, और निकलते निकलते कहा मुफ्ती साहब हम यहाँ कोई बयान करने आए हैं। तो मुफ्ती साहब ने कहा ना ना बिल्कुल भी बयान करने नहीं आए। तो फिर अगर ये बस्ती वाले इजाजत देते तो हम उनको ये कहते, ये कहते, ये कहते, ये कहते, 2-4 बात सुनाई। फिर कहा हज़रत हम यहाँ पे बयान कर रहे हैं। कहा जी ना बिल्कुल बयान करने नहीं आए। फिर मौलाना कहने लगे अगर ये रजा देते तो हम ये कहते, ये कहते, ये कहते, सारी बात सुना डाली। अब बयान तबलीग का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी बात पहुंच गई। तो कोई जरूरी नहीं कि ये कहें भाई हम तबलीग वाले हैं, भाई बात कहनी है, कोई उन्वान बना दिया। उन्वान बनाते बनाते आपने जोनों की जमातों का सुना होगा, व्यापारी बनकर मोहल्ले में गए, फेरिये बनकर मोहल्ले में गए और वहाँ सर्वे करके आ गए। इसी को तो हिकमत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिकमत कहते हैं कि भाई उसको सीधी बात नहीं कर सकते, अब हिकमत से बात करनी पड़ेगी। लोग हिकमत के तकाजे में काम छोड़ देते हैं, भाई हमने हिकमत छे रहवा दो ने, ये थतू नहीं અને हिकमत थी करवानो छे। हिकमत करने के लिए, छोड़ने के लिए। अल्लाह कह रहे बुलाओ हिकमत से, ऐसा नहीं कि अभी हिकमत नहीं है तो मत बुलाओ। ये फरमाया बुलाओ हिकमत से, कि उसको कैसे करने का। यूं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने आपको ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि बात कुछ नहीं की, लेकिन तरीका वो इख्तियार किया कि उसका दिल जीत लिया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बहन थी शीमा, रज़ाई बहन थी, बहुत जलाली थी, बहुत गुस्से। तो उसको मक्के के लोगों ने कहा, वो मुसलमान नहीं हुई थी, तो मक्के के लोगों ने उसको कहा तेरा भाई, वहाँ के मक्के के लोग बदर में जो कैद में गए थे, उसके बाद उसको छुड़ाना था। तो सिफारिश के तौर पर कैदियों की बात करने के लिए लोगों ने कहा कि तुम्हारे भाई के पास तुमको जाना है। वो गई, तो वो तमाखे से के साथ, पूरे वफ्त के साथ, काफिले के साथ जब मदीने की हदूद में पहुंची तो साहबा ने देखा कोई काफिला आया है, कौन होगा ये? तो देखा कि कोई औरतें हैं। तो कौन लोग हो? कहा जाओ तुम्हारे नबी से कहो तुम्हारी बहन आई है। अरे भाई हमारे नबी की कौन सी बहन? तो कहा जाओ तुम्हारे नबी से कहो कि फलां नाम की खातून है जो तुम्हारी बहन आई है। बहुत एकदम तेवर बिगड़े हुए हुजूर से जाकर फरमाया, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा हाँ वो मेरी बहन है, रज़ाई बहन है। और खुद अपनी जगह से उठकर आ गए, वो जानते थे बहन कैसी है। तो उसके इस्तकबाल में हुजूर खुद निकले और उसका इस्तकबाल किया और अपनी मस्जिद में ले गए। वो ईमान वाली है गैर ईमान वाली है, उसको कहाँ ले गए और अपना रुमाल बिछाया। हुजूर अपने रुमाल पर उसको बिठा रहे हैं
और बिठाकर तबलीग की कोई बात नहीं की, तबलीग की एक भी बात नहीं की। खैरियत है बहन, कैसी तबीयत है, मानुस करने की बातें हो रही है। वो बहन फ्री भी नहीं हो रही है, मानुस भी नहीं हो रही है, बात सुनने के मूड में भी नहीं हो रही है। तो बचपन की यादें याद दिलाते, वो बहन याद है तुझे, हम दोनों साथ में बकरियां चराने जाते थे, कभी तू मुझे घोड़ा बनाती थी, कभी मैं तुझे घोड़ा बनाता था, और ऐसी बातें, ताकि वो बातें जरा दिल खुले उसका। एक बार कहा बहन तूने मुझे काट लिया था, यूं करके आस्तीन चढ़ा कर दिखाया, वो सारी बातें करते रहे, उसका दिल पसीज गया। कोई तबलीग की बात नहीं। जब बात पूरी हो गई, इकराम पूरा हुआ, तो अपने घरानों से कहा कि मेरी बहन आई है, उसका कुछ इकराम करो। तो एक घर से मंगवाया, दूसरे घर से, जिसके पास से जो होता है उसका इकराम किया। तो मदीने वालों ने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बहन का इकराम करना चाहते हैं, तो जितनों से हो सका सबने इकराम किया। तो उस बहन का इतना दिल नरम हुआ कि अभी तो हुजूर ने कोई तबलीग की बात नहीं की, दिल जीतने की बात। कौन सी बात? ऐसा दिल जीता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास से जब उठने लगी तो कहने लगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैं अब आपकी बहन नहीं, पहले आपकी बांदी और आपके गुलाम हूँ, आप जो चाहे ऐसा मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। कि कोई तबलीग की बात नहीं है, लेकिन दिल जीतने का तरीका, दिल जीतने के तरीके। कल मैं तखत पर बैठा था, तो एक साहब से मैंने कहा ऐसी बातें हो रही थी कि वो असल में दूसरी बिरादरी से हैं, तो वो घुलते मिलते नहीं हैं। मैं भी पूछ रहा था ना इनसे कितनी बिरादरियाँ हैं। हम बिरादरियाँ नहीं हैं, ये हमारी ओळखाण है खाली, बस। अल्लाह के वहाँ कौन इज्जत वाला है वो अल्लाह ही जानता है। काले कलोटे हबशी, काले कलोटे हैं, चपटी नाक वाले हैं, वो अल्लाह के वहाँ उस गोरे चिट्टे से अफजल थे जो मक्के का मुतवल्ली है। अबू लहब मक्के का मुतवल्ली है, गोरा चिट्टा है और हट्टा कट्टा मुश्तंडा है, और अल्लाह ने अपने बैतुल्लाह की खिदमत के लिए उसको कबूल किया है। और एक सुलगता हुआ अंगारा ऐसा खूबसूरत, लेकिन अल्लाह की निगाह में बेकीमत है। तो हम कोई किसी को किसी उन्वान से न तोलें, कौन अल्लाह के वहाँ किसका कैसा है हमें नहीं पता। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इसलिए हम किसी को हल्की निगाह से न देखें, हम हर एक का दिल जीतने की कोशिश करें। ये जितनी हम तकसीम है, ये फला बिरादरी, ये फला बिरादरी, ये अल्लाह ने ओळखाण के लिए बनाया है, ओळखाण और पहचान के लिए बनाया है। बाकी हम उम्मत है, उम्मत, हम सब एक हैं, हम एक माँ बाप की औलाद हैं, हमारा जन्म एक माँ बाप से हुआ है। ये तो हम खानदानों में हमारे बाप की एक पहचान की वजह से हम हो गए, वरना हमारे माँ बाप एक है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा कलमा एक है, हम उम्मत है, हमने एक कलमा पढ़ा है और हम इस बुनियाद पर जुड़ेंगे। साहबा इस बुनियाद पर जुड़े थे। हजरत मुसअब इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई को कुफर ने पकड़ लिया, तो उनका भाई कुफर की हालत में थे, ईमान वालों ने पकड़ लिया। तो मुसअब इब्न उमर ने देखा कि मेरे भाई को पकड़ा गया है, तो अंसारी ने पकड़ा, तो कहा वो मेरे भाई, प्यारे अंसारी भाई, जिसको तूने पकड़ा है जरा कस के कस बांधना, बड़ा फिदिया मिलेगा, उसकी माँ बड़ी मालदार है। ये कलमे के रिश्ते को उजागर कर दिया उन्होंने, उभार दिया। हम कलमे के रिश्ते को उभारेंगे, और रिश्ते छोटे हैं, कलमे का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ओहद में, बदर में अपने अब्बा के 2 टुकड़े कर दिए। लोगों ने पूछा क्या किया, तुमने अपने अब्बा को मारा? करना, मेरे अब्बा की शक्ल में मेरे नबी के दुश्मन को मैंने मारा है। कि हमारे कलमे के रिश्ते ऊपर रहेंगे, सारे रिश्ते हमारे छोटे हैं, कलमे का रिश्ता सबसे बड़ा है। अब्दुर्रहमान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे बदर के बाद अब्बा ईमान लाए, तो अब्बा से कहने लगे अब्बा जी बदर में तुम मेरे सामने आ गए थे, मैंने अब्बा समझकर छोड़ दिया। अबू बकर कहने लगे बेटा मेरे सामने तो आता, बेटा समझकर नहीं छोड़ता। हम कलमे के रिश्ते पर जुड़े हुए हैं। मौलाना इस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर हमने इस रिश्ते के अलावा और कोई चीज़ों की बात की तो हमने टूटी हुई उम्मत को और तोड़ दिया, कटी हुई उम्मत को और काट दिया। ये फला बिरादरी, ये फला बिरादरी, हम कलमे वाले हैं, हम वाले हैं। बहस मौलाना इलियास साहब के मलफूजात में है कि मुसलमान का इकराम बहैसियत मुसलमान होने के हमें करना है, कि मुसलमान है, मुसलमान है, इस निस्बत से हम बहैसियत उसके मुसलमान होने के उसको उठाने वाले बन जाए। इसलिए जितने हमारे मोहल्ले में और बिरादरियों के लोग हैं, उनकी गमी में शरीक हों, उनकी खुशियों में शरीक हों, उनके दिल जीतने की ऐसी हमारी लालच हो कि हम उनको ले लें, हम उनको उठाने की कोशिश करें। ऐसी हुजूर इस्लाम लोगों को ऐसा ले लेते थे कि एक बार आया हुआ दोबारा छोड़कर जाता नहीं था। हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के गुलाम हैं, गुलाम, वो उनके वहाँ के नहीं हैं, वो उनके वहाँ से नहीं है, वो अजमी हैं और हुजूर अरबी हैं,
वो तो बिकते बिकते इनके वहां आए थे। अम्मी जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने उनको हदिये में दिया था। उनके अब्बा उनको ढूंढ रहे थे, पता चला कि वो हुजूर के पास है, वो अजमी हैं। उसको इतना लिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने घर में उनको रखा। जब उनके अब्बा फिदिये की रकम लेकर पहुंचे तो अब्बा जी ने हुजूर को फिदिये की रकम पेश की कि मेरा बेटा आपके पास है, आप दे दीजिए। हुजूर ने फरमाया अगर वो आपका बेटा है, मुझे कोई फिदिया नहीं चाहिए, आप उसको ले जाइए, आप उसको ले जाइए। तो अगर वो आना नहीं चाहेगा तो मैं नहीं भेजूंगा। तो वो कहने लगे कि मुझे मंजूर है। वो ये सोच रहे थे कि कहीं क्या ऐसा हो सकता है कि बेटा अपने बाप को छोड़कर पराये के पास रहने को पसंद करे, ऐसा कभी हो सकता है, और वहाँ गुलाम रहेगा, मेरे पास आज़ाद हो जाएगा। तो वो शर्त मंजूर कर ली। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ैद को बुलाया, कहा इनको जानते हो? कि जी अब्बा जी है। इनको जानते हो कि ये मेरे चचा हैं? कब बात करो। उन्होंने बात कर ली। उसके बाद कहा बेटे हम आपको लेने आए हैं, हम तो तेरी वजह से परेशान हो गए, ये फिदिया की रकम, लेकिन हुजूर ने कहा ऐसे ही तुझे आज़ाद कर दिया। जब पूरी बात कर ली तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़ैद मुझे भी जानते हो? बस इतना जुमला कहना था कि एकदम धड़ाम देकर हुजूर की गोद में गिर गए और फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। ये सगे बाप हैं, चचा हैं, यहाँ गुलाम है, वहाँ आज़ाद है, लेकिन एक बार हुजूर के पास आया वो हुजूर को छोड़कर ना जाए। ये अजमी है, हुजूर अरबी है, अपने खानदान की लड़की से निकाह करवाया उसका कि हम कलमे के निस्बत पर जुड़ें, कलमे के निस्बत पर हमें दीन जमा करेगा और कोई नहीं जमा कर सकता। कल बहुत सारे देहातों के कर्जदारियों में वहाँ मकतब नहीं था, वो नहीं था। एक साहब आकर मुझे कहने लगे असल में वो फला बिरादरी है, उस वजह से वो ज़रा मुतवज्जे नहीं हो रहे। भाई हमें मुतवज्जे करने ही का तो काम है हमारा, हम बिरादरी नहीं देखेंगे, हम तो ये देखेंगे कलमे वाला है, बस ख़त्म बात हो गई। भाई किसके पेशानी पर लिखा है कि फला है फला है फला है, हम कलमे वाले हैं, सब है। तो हम इसकी फिक्र करें कि कोई घर हमारा ना छोटे, हम उनको बहैसियत मुसलमान होने के, ये ईमान वाला अगर बगैर मेहनत के चला गया उसका क्या हाल बनेगा। इसके लिए हमारा 2.5 घंटे की मेहनत, कोई घर ना छोटे, कोई फर्द ना छोटे, इसको ऐसा अपनाना, ऐसा अपनाना। हमने एक मस्जिद वालों को देखा, उनकी मस्जिद के अतराफ में एक बिल्डिंग है, वहाँ बाहर के लोग आकर फेरिए रहते हैं, फेरिए यूपी के फेरिए अक्सर। तो वो मस्जिद में जितने फेरिए आते हैं वो कोई गैर मानुस को 15 दिन के लिए, कोई महीने के लिए। तो मैंने उस मस्जिद वालों को उससे ताज्जुब, तो मैंने वो थोड़े दिनों में इतने उनसे जुड़ जाएं वो फेरिए कि वो वहाँ जुड़ भी जाएं और 3-3 दिन भी लगाएं। उस मस्जिद वालों का तरीका ही कार मैंने ये देखा कि जब वो फेरी आते हैं तो उस मस्जिद के साथ देखते हैं कि अच्छा ये नए चेहरे नजर है, कौन है। तो नमाज के बाद उनसे मिलते खैरियत है, कहाँ के हो, कैसी तबीयत, और शाम को खाने की दावत कर देते हैं कि आप हमारे वहाँ आए हो, आप हमारे भाई हो, तो साथ में खाना खाएंगे। तो उनको साथ में खिला देते हैं। फिर जुमा के दिन होता है, देखो आज जुमा है, तुम्हारी छुट्टी का दिन है, तो आज शाम को अपने साथ में खाएंगे। वो फेरिए हैं। अब हफ्ते में 1-2 मरतबा होगा, फिर उनको शर्म आती है, वो कहते हैं आपकी हमारे वहाँ दावत, वो वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह दोस्ती हो गई। अब वो यहाँ रहे और करीब नहीं होते होते मैंने उस मस्जिद वालों का अंदाज़ा ये किया कि जितने फेरिए वहाँ फेरी फिरने आते हैं, 15 दिन हो या महीना, एक भी नहीं बचता कि जिसके 3 दिन न लगे हो। वो मानूस करना पड़ता है। आप मुझसे प्यार की बात करोगे तो मैं आपसे प्यार की बात करूंगा, लेकिन आप ही मुझे प्यार नहीं दोगे तो मैं आपके पास आऊंगा। जब ये मोबाइल का ज़माना नहीं था, हम देवबंद में पढ़ते थे, तो एक स्टडी में बात करने जाते थे, पैसों से बात करने थे, तो वहाँ लिखा हुआ यह था कि प्यार से बात करो, तुम्हें प्यार फ्री में मिलेगा। तुम अबे तुबे से बात करोगे तो भी अबे तुबे से बात करेगा, और तुम प्यार से बात करोगे तो। इन बस्तियों वालों को, इन देहात वालों को प्यार देने की जरूरत है। ये नहीं देखना फला बिरादरी है, फला बिरादरी है, ये कलमे वाला है, और हो सकता है मुझसे ज्यादा अल्लाह के वहाँ ये इज्जत वाला हो, और अल्लाह की निगाह में मुझसे ज्यादा ये कीमत वाला हो। हम इनके इस शक्ल से ना सोचें कि ये किस हाल में जी रहा है, पता नहीं उसका हल कब अच्छा हो जाए और मेरा हल कब बुरा हो जाए। आज वहाँ वसीउल्लाह खान साहब की एक जगह बात पड़ी कि किसी को जिना में देखो तो भी उससे बदगुमान मत हो सकता है जिना करने के बाद वो तौबा कर ले, और हम उसके बदगुमानी करके अपना पाप का घड़ा शुरू कर दें और वो नेकियों का घड़ा शुरू कर दें। इसलिए बहैसियत उम्मत के उम्मत को जमा करना है। इसलिए सब तय करो कि अपने 2.5 घंटे का ऐसा निज़ाम बनाओ कि इनको अपनाओ। जहाँ हम खुलकर बात कर सकते हैं वहाँ खुलकर बात करो, वरना मुझे उसको दोस्त बनाना है। सहाबा का एक मजमू आपको मिलेगा जिनसे हुजूर ने बात की नहीं, उनकी दोस्ती में वो मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने कहते हैं मुझे थोड़ी मुसलमान होना था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती की वजह से मैं तो हुआ हूँ। दोस्ती ले आए। आज दुनिया में दोस्ती में लोग क्या क्या करते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं दोस्ती में,
कितने लोग दुनिया में दोस्ती में धर्म छोड़ देते हैं, तो वो दोस्ती में हमारी दोस्ती नहीं करेंगे। तो हम दोस्ती करना सीखें, दिल जीतना सीखें, ये हमारे 2.5 घंटे की मेहनत का हदफ है। करोगे इंशाअल्लाह। इसी तरह ये दूसरे कश के भाई ने बात सुनाई, इसी तरह माशाल्लाह भाई ने बहुत अच्छी कारोबारी सुनाई, तबीयत खुश हुई। ऐसे एरिया को मुंतखब करना जो एरिया बंजर है, बंजर। दूसरे गश्त के जरिए से हमें वो एरिया को कवर करना है कि जहाँ पर काम की कोई शक्ल नहीं है। ऐसी मस्जिदें नहीं लेनी है कि जहाँ काम हो रहा है, वो नुसरती गश्त हो जाएगा। हम अपने 2.5 घंटे के जरिए से तो अपने मोहल्ले को कवर करें। बस एक गुजारिश इनसे ये थी कि जो आपने कहा कि हमारी सुबह की जमात तकाज़ों पर जाती है और शाम की जमात घर घर की मुलाकातों पर, तकाज़ों पर अलग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अपनी सारी जमातों से कहें कि आप जो सुबह की मुलाकातों में तकाज़ों पर जाते हो, वो बजाय तकाज़ों के अपने घर घर की मुलाकातों में जाओ। अपनी घर घर की मुलाकातों में जाओ, उसका 2 नफ़े होंगे। एक तो आपके 100% मुलाकातों की जो वो पूरी होगी, फिर वो तकाज़ा आप उस घर वालों से मांगो जिस घर में आप मुलाकातों में जा रहे हैं। भाई आप चिल्ले का तकाज़ा है, उस घर वालों से मांगो। 4 महीने का तकाज़ा है, उस घर वालों से मांगो। 3 दिन का तकाज़ा है, आप उस घर वालों से मांगो। फिर आप कहोगे कि सुबह में एक ही मैं अकेला अपने मोहल्ले का होता हूँ, दूसरे अपने मोहल्ले के दूसरे अफराद बनाओ, दूसरे अफराद बनाओ। वो मोहल्ले में हमें ऐसा समझते हैं कि सब लोग सोए हुए होते हैं ना, अक्सर लोग जागते होते हैं। ये हमारा गलत ख्याल है कि लोग सोए होते हैं। इसलिए हम 2 काम करते हैं कि सुबह में या तो मुलाकातें नहीं करते हैं। सुबह का वक्त हम ये नहीं कहते सुबह की ही मुलाकातें होनी चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त मुलाकात होनी चाहिए जिस वक्त में मोहल्ले वाले मिल सकें। मुलाकात उस वक्त होनी चाहिए। लेकिन सुबह के वक्त में इसलिए कहते हैं कि अक्सर सुबह के वक्त में लोग मिल जाते हैं और सुबह के वक्त में हम भी फारिग होते हैं। हाँ, शाम को जैसे भाई ने सुनाया कि 4 ही दिन हो पाते हैं, 3 दिन अमलों की वजह से हम कर ही नहीं पाते। सुबह में आमतौर से हमारा वक्त फारिग होता है, मोहल्ले वाले भी मिल जाते हैं, हम भी फारिग होते हैं, तो सुबह के वक्त में काम आसान हो जाता है। और मोहल्ले में लोग जागते भी होते हैं, हमारे ज़हन में लोग सोते होते हैं, वरना अक्सर जागते हैं। आपको बताऊं कितने जागते हैं? बताऊं कितने? भाई इस मजमे में फजर बाद जो नहीं सोता वो जरा हाथ उठाओ, नहीं सोते वो हाथ उठाओ जरा। सब देखो, पीछे देखो जरा, जो फजर बाद नहीं सोते। देख लिया आपने? देख लिया? हम क्या समझते हैं लोग फजर बाद? देख लिया आपने? ये सब जागने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसलिए हम से गुजारिश है कि तकाज़ों की अलग जमात बनाने के बजाय अपने मोहल्ले की ही मुलाकात करो, उसी में तकाज़ों के मुतालबे करो। और एक बात सुनो, और फजर की मुलाकातों की इसलिए तरकीब देते हैं, मोहल्ले वाले भी मिलेंगे और हम अकेले अपना अमला बनाओ, जो आपके साथी उन्हीं में से दूसरा, तीसरा, चौथा, ताकि 100% अच्छा मजबूत निज़ाम बने। करोगे इसके बाद? और दूसरे गश्त में आपने जैसे कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत ये कर रहे हैं कि उस ऐसे एरिया को हदफ बनाया जो एरिया बंजर है, जो एरिया बंजर है। और गश्त के अलावा ये जाते हैं, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमें जो दूसरा गश्त हम करते हैं ना, वो गश्त के लिए नहीं करते। 2.5 घंटे से जिस तरह हम अपने मोहल्ले को कवर करते हैं, ऐसे दूसरे गश्त के जरिए से हमसे अतराफ के जो मोहल्ले हैं बंजर, हम 2.5 घंटे के जरिए से उन बंजर मोहल्लों को आबाद करें। और भाई से मैंने एक बात पूछी, शायद आपने सुनी हो, कि गश्त के अलावा भी आप वहाँ जाते हो। ये बुनियादी बात होती है। खाली गश्त में जाने से वो मोहल्ले खड़े नहीं होते, बल्कि गश्त के अलावा वहाँ दोस्ती करने के लिए जाओ। पूरे हफ्ते में हमारा आना जाना रहे, जब पूरे हफ्ते हमारा आना जाना होगा, वो मोहल्ले वाले हमसे थोड़े मुतवज्जो हो जाएंगे। फिर जिस दिन गश्त होगा उस दिन जाएंगे तो हमें अच्छा समर्थन मिलेगा। हम पूरे हफ्ते तो वहाँ कुछ गए नहीं और अचानक गश्त के दिन टपक पड़े तो बोलो हमें ताउन मिलेगा। लेकिन पूरे हफ्ते हम उनकी गनी में गए, खुशी में गए, खैर खैरियत पूछते आते जाते रहे, तो अब उसमें जिस दिन गश्त में जाएंगे तो उनके ताउन की शक्ल अच्छी बन जाएगी। बोलो बनेगी नहीं बनेगी? तो सारी मस्जिदें इस तरह करते हैं या सिर्फ गश्त के दिन जाते हैं? अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा, बाकी अगर इसमें कमजोरी है तो आप हजरत नियत कर लो कि इंशाल्लाह हम इसको इसी शक्ल पर ले जाएंगे। बस एक बात थोड़ी सी फिक्र की है कि ये कह रहे थे कि हम 1 साल तक उस जगह पर गश्त कर रहे हैं। हमारे हजरात कहते हैं 2-2.5 महीने एक जगह को मेहनत का मैदान बनाओ। अगर 2-2.5 महीने में आप 1 अठवाडिया मुस्तकिल गए, फिर 1 अठवाडिये के बाद उनको अपने वहाँ थोड़ा सा लाए, फिर 2 अठवाडिये, उम्मीद है वहाँ से पहले अठवाडिये में 2-3 आदमी आपको 3 दिन के मिलेंगे, दूसरे अठवाडिये में 2-4 मिलेंगे, तीसरे अठवाडिये में मिलेंगे, तो 8-10 अठवाडिये आप जाओगे ना, तो वहाँ इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कुछ हमला ऐसा मिल जाएगा कि वो कुछ ना कुछ काम कर 3 दिन लगाने वाला होगा, कुछ आपके साथ चलने वाला हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो आप उसको दूसरे मोहल्ले वालों को दे दो। हो सकता है कि बाज़ मरतबा हमसे नहीं हुआ, वो दूसरे मोहल्ले वाले को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने एक जगह जमात दी, तो वहाँ 6 महीने तक हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु काम किया। तो जब वो काम नहीं हुआ तो हुज़ूर ने फरमाया कि अच्छा आप आ जाओ, अब फलां को भेजो।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा, जैसे हज़रत अली गए अल्लाह ने उनके हाथ से वो काम करवा दिया। तो बाज़ आदमी होते हैं ऐसे कि अल्लाह ने उनको ऐसा मलका दिया होता है, बाज़ों का रोना होता है, बाज़ों के करने के ऐसे तरीके होते हैं कि तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम कोशिश करें 2-3 महीने हमने गश्त किया, अगर वो चीज़ वजूद में आ गई बहुत अच्छा, वरना फिर उसको और मस्जिद के हवाले करो, हम दूसरा मोहल्ला ले लें, इसकी ज़रा कोशिश कर लिया करें। करोगे इंशाअल्लाह? चलो अल्लाह तौफीक। जी यहाँ जाओ। एक बात ये पूछनी थी कि हम छोड़ना चाहते हैं मोहल्ले को, लेकिन साथियों की नौयत ऐसी ही, एक साथियों की नौयत हमारे पास है, हम छोड़ना चाहते तो हम छोड़ नहीं सकते। अच्छा। ताकि दूसरे साथी हम भेजें, हाँ उनको मानुस होते होते 15 दिन महीना हो जावे। हाँ अभी हम तश्कील के जोर पर चल रहे हो, अभी तश्कील ही कर रहे हैं, खुशूसी मुलाकात के जरिए जो बंजर में जानते हैं। मैंने अभी आपको यही कहा कि वहाँ हमें तश्कील नहीं करनी है, मैंने कहा हमको पूरी बात करनी है, छिल्ले तश्कील करनी है। भाई वो तो हम तो देखेंगे कि एक हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि अब देखो सामने वाले को आपको क्या महसूस हो रहा है, हम 4 महीने की बात रखें, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि वो इनकार करेगा तो उसको इनकार न करने दें, उसके इनकार करने से पहले चिल्ला मांग लो। और ऐसा लग रहा है चिल्ले के लिए भी आमदा नहीं होगा तो उसको इनकार न करवाओ, चिल्ले से उसको 3 दिन पर आ जाओ। समझ रहे बात आप? तो फिर ये चीज़ आसान हो जाएगी। समझ रहे बात आप? बहुत अच्छी बात। और कोई मस्जिद वाले आ जाए, आप तशरीफ लाए, साथ में आओ माशाल्लाह। अरे कोई सफ़ेद बाल काले वाले को खड़ा करो, नहीं सफ़ेद बाल वाले को भाई आ जाओ, तो खड़ा रहना पड़ा लंबी देर तक। आपकी मस्जिद में दोनों तालीमों का क्या निज़ाम रहता है? तालीम होती हमारी। भाई तशरीफ रखें, भाई बैठ जाएं, ऐसा ना करें। देखो आप तो एक दिन यहाँ बैठे हो, ये हमारे साथ जमात है ना, वो 40 दिन ऐसे बैठती है। कितने दिन बैठेगी? ये सब शुगर वाले भी हैं, प्रेशर वाले भी हैं, डायबिटीज़ वाले भी हैं, वो सब्र करके बैठते हैं। आपको कितने दिन बैठना है? आज आपका इख्तिमा पूरा, इनका तभी शुरू हो रहा है। कितने दिन बैठना है? तो आप एक दिन साथ नहीं दोगे तो आप क्या कर लोगे? इंशाल्लाह बैठेंगे। भाई उठोगे तो नहीं? कौन कौन उठेगा? ज़रा हाथ उठाओ। अच्छी बात है भाई, आप बैठ जाओ वरना चले जाओ। आपको बैठना है बैठ जाओ, जाना है चले जाओ। जी ईशा की नमाज के बाद तालीम होती है हमारे। हाँ 10-15 मिनट तालीम होती है। अच्छा, कौन सी किताबों में से पढ़ते हो? हर हिस्से में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, 2-3 मिनट 2 मिनट निशान लगा कर पढ़ते हो? दोनों किताबों में से पढ़ते हो? नहीं, फज़ाइल अमल में से पढ़ते। और सदक़ात में से? मगरिब बाद पढ़ते। दो तुम तालीम जाते हैं? 2 तालीम करते हो? नहीं, वो तालीम तो ईशाबाद ही होती है, हाँ लेकिन मुलाकात में जाते हैं हाँ। उस वक्त उसमें से करते हैं। फज़ाइल सदक़ात में से? जी, थोड़ी सी तालीम होती उसमें से क्यों करते हो? नहीं तो उस वक्त तालीम क्यों करते हो? अच्छा, जोड़ने के लिए तालीम करते हो। कितनी देर तालीम करते हो? बस 2-4 मिनट 2-4-5। मुलाकात की तकलीफ होती है। अच्छा अच्छा, तो गोया वो तालीम नहीं है, वो तो जोड़ने के लिए आप करते हो। तो जोड़ने के लिए आपको अल्लाह के नबी की बातें ही मिली कि जोड़ने के लिए तालीम को वापरते हो। हाँ भाई, लोगों को जोड़ने के लिए तालीम को वापरते हो आप। चलो, और ईशा के बाद कितने लोग बैठते हैं आपकी नमाज़ियों में से? 40-50 आदमी बैठते हैं। 40-50। कितने मुसल्ली आपके मस्जिद में? 100-100। ये इतने 40-50 कितने वक्त से बैठते हैं? कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। अच्छा, और हिसाब से खेती वाले में से होता है। उसके के बाद खेती करने जाते हैं। अच्छा अच्छा, थके हुए आते हैं तो इस वजह से कभी आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, और घरों में क्या हाल है तालीम का? कितने मकान हैं आपकी मस्जिद के अतराफ में? 300 मकान। 300। कितने मकानों में तालीम हो रही है? 20-25 मकानों में। आपके वहाँ वक्त लगे हुए साथी कितने हैं? 150। 150। मतलब वो 150 भी नहीं कर रहे हैं वक्त लगाए हुए भी? 4 महीने वाले चलने वाले कितने हैं? 150। और मस्तूरात वक्त लगाई हुई? हाँ 50 से। तो वो भी नहीं कर रही है वक्त लगाई मस्तूरात? 20-25 मकानों में हो रही है तब। अच्छा, घरों में कितनी देर तालीम हो रही है? अलग अलग होती है सबकी, किसी की 10 मिनट, किसी की 15 मिनट तालीम होती है। बहुत अच्छा। ये कब से 25 मकानों में हो रही है?
पहले कम घरों में होती थी, अब बड़ी बड़ी अच्छा अच्छा, आपके वहाँ इज्तिमाई तालीम के हल्के हैं? हाँ, आपके कुल मकान कितने? 300 300। इज्तिमाई तालीम के हल्के कितने हैं? 7 सात इज्तिमाई तालीम के हल्के हैं। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। और कोई आपके मस्जिद के अतराफ में कोई ऐसा मोहल्ला छूटता है कि जहाँ मकानात हैं और तालीम का हल्का नहीं है? नहीं, सारे मोहल्लों में है। माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छी बात। मस्तूरात के वक्त लगाने जमातें बनती है कुछ? जी बनती महीने में एक आध जमात 3 दिन की बनती है? कभी बन जाती है, कभी एक भी बन जाती है, कभी साथ में 1-2 हो जाती है, माशाल्लाह, कभी नहीं भी बनती है। बहुत अच्छी तशरीफ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कामदारी भाई ने सुनाई, अच्छी तालीम का अमल। बस इसकी कोशिश करें कि हमारी तालीम में हमारे मोहल्ले के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जो ईमान वाले की ग़िज़ा है। ग़िज़ा जानते हो? ग़िज़ा और दवा दो में फ़र्क है। दवा ज़रूरत पर आदमी खाता है, दवा कब खाता है? और ग़िज़ा रोज़ खानी है। ईमान वाला अपने ईमान पर जो बाकी रहे, उसके लिए वो उसको ईमानी ज़िंदगी सुनानी पड़ेगी। ईमान वाला कैसा होता है? ये जो फ़ज़ाइल की किताबें हैं ना, वो अजीब व गरीब किताबें हैं। वो क्या किताबें हैं? वो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख से लिखवाई है। उसमें क्या है? ये ज़िंदगी के 5 शोबे हैं: ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाकियत। ये 5 शोबे हैं। इन 5 शोबों में ईमान वाला कैसे रहे, वो ज़िंदगी उसमें लिखी है। मौलाना ऐसा फरमाते थे कि अगर हमारा काम चल पड़ा तो सबसे पहले लोगों में जो चीज़ जिंदा होगी वो होगी ईमानियत और इबादत। ईमानियत और फरमाया उससे लोग अपना दीन बनाएंगे, और मामलात और माशरत की खराबी से लोग अपना दीन बर्बाद कर देंगे। बहुत ख़तरनाक उससे बर्बादी होती है कि अगर आदमी कितना भी बड़ा बुजुर्ग है लेकिन पेट में हराम चला गया, तो चाहे कितना बड़ा बुजुर्ग हो, उसकी इबादत उसके सर के ऊपर नहीं जाएगी। काबा शरीफ में चला गया, बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ कर दुआ करेगा तो भी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि पेट में हराम जा रहा है। इस किताब में ये चीज़ें लिखी है, हलाल क्या है, हराम क्या है, हुकूक क्या है, अम्मी का हक क्या, अब्बा का हक क्या। कितना भी बड़ा बुजुर्ग बन जाए, अगर हुकूक की पाईमाली हुई तो ये हुकूक की पाईमाली बाज़ मरतबा उसको कलमे की मौत से भी महरूम कर देती है। हाँ, कलमे की मौत से। हुजूर के ज़माने में एक आदमी था, उसको लोग कलमा पढ़ा रहे हैं और कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो शरीफ ले गए, क्या बात है? तो कहा कि उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। क्यों? तो उनकी अम्मी उनसे नाराज़ है। तो अम्मी से पूछा क्या वजह, आपको इनसे क्या नाराज़गी है? कहा मेरे बेटे की बुजुर्गी में मुझे कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा बुजुर्ग है। फिर फरमाया रात का तहज्जुद गुजार है और दिन का रोज़ा रखने वाला है। ओ रात को जागने वाला, दिन का रोज़ा रखने वाला, अब क्या रह गए बुजुर्गी में बाकी? फिर क्या मसला है? कि उसके ज़बान के सख्ती से मेरा दिल छोड़ गया है। इतने बड़ी बुजुर्गी में हक टूटा है तो कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। ये मजमे को हमें सुनाना पड़ेगा, हर घर में ये सुनाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं इस किताब में ये 5 चीज़ें, ईमानियत है, इबादत के 5 अरकान, ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, 5 अरकान उसमें है। फिर मामलात है, हलाल क्या है, हराम क्या है। हाँ, हराम का निवाला पेट में चला गया तो क्या है, एक बालिश किसी की ज़मीन ले ली तो क्या है। फिर हुकूक है, अम्मी का क्या है, अब्बा के, और माशरत और अखलाकियात। एक एक मुसल्ली की ये ज़रूरत की चीज़ है। इसलिए हमारे बुजुर्ग 2 बातें फरमाते हैं। एक ये फरमाते हैं कोशिश करो कि 100% हमारे मुसल्ली ये बातें सुने। इसलिए मस्जिद की तालीम को ऐसे वक्त में करो जिस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मुसल्ली शरीक हो सकें। हमारे वहाँ ये ज़रूरी नहीं फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ले वाले जिस वक्त जमा हो सकें उस वक्त तालीम करनी है। और दूसरा कोशिश करें कि सबको तालीम में शरीक करो। उसके लिए क्या करेंगे? अपनी मुलाकातों में हम जब जाएं तालीम की अज़मत लोगों में बयान करें, घर में भी तालीम जिंदा करने की अज़मत बयान करें। अगर इस तरह से लोगों में बयान करेंगे ना तो इंशाल्लाह उस तालीम की अज़मत बयान करने से लोग मस्जिद में भी बैठने वाले बनेंगे और उस घर में भी तालीम का अमल शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इससे घरों की तालीम में इजाफा होगा। मस्तूरात में बयान करने जाएं, वहाँ घर की तालीम को मुस्तकिल खोलें, उसके नफ़े बयान करें। हमारी मस्तूरात जब तालीम के हल्के में जाएं, हम अपने मस्तूरात से कहें तुम अपने तालीम के हल्के में आखिर में तालीम की तरगीब दो। मर्दों के ज़रिए से तरगीब, मस्तूरात के ज़रिए से तरगीब, हम अपने उमूमी बयान में मर्दों को तरगीब, मस्तूरात में तरगीब। इस तरह बार बार की तरगीब इंशाल्लाह उनमें इस अमल के शौक़ को पैदा करेगी। हर चीज़ को शुरू करने की, मेहनत करने की चीज़ है। तो इस तरह हम अपनी तालीम को शुरू करें। एक एक आदमी हमारा तालीम में बैठे, उसकी हम नमाज़ पढ़कर 50 मुसल्ली होते हैं, जैसे 30 मस्जिद और जमात के साथी,
अपने दाएं बाएं दो हैं, भाई तशरीफ ले आए, देखो मस्जिद में तालीम का अमल हो रहा है। अगर ये 30 मस्जिद और जमात के साथ ही दाएं बाएं पर एक एक पर हाथ रख दें, तो ये 60 आदमियों पर हाथ रखा, तो उसमें बोलो कुछ ना कुछ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो हमारा इजाफा हो जाएगा। तो हम एक तो तालीम बहुत हल्के से करते हैं, और सब मुसल्ली चले जाएं तब हम तालीम शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई सुन्नत पढ़ ली, सबको पता है कब तालीम होगी, तब तालीम शुरू कर दें। अब हम आराम से, बाज़ मस्जिदों में, मस्जिद और जमात में भी ऐसा होता है, सारे वजीफे और सारा पढ़ने के बाद बैठन, भाई सलाम फेर दी, मसनून अस्कार पढ़ लो, बाकी वजीफे बाद में पढ़ना। मसनून अस्कार है वो मसनून है, वो पढ़ने ही पड़ेंगे, वो पढ़ना ही है, उसके पढ़ने के बाद फौरन बैठ जाओ और मशवरा शुरू कर दो। ऐसे तालीम भी फौरन शुरू कर दो। अब हम इतनी देर हम करते हैं, सारे मुसल्ली चले जाएं, अब फिर उसके बाद हम बैठेंगे। तो हम इन अमलों को अपने वक्त पर करने की कोशिश करें। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और कोशिश करें, जैसे भाई ने सुनाया, बहुत अच्छी कारगरी कि हम सारी किताबों में से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। उन्हीं किताबों में फज़ल सदक़ात भी है। हम मजमे को जोड़ने के लिए किताब नहीं पढ़ेंगे, हमारे वहाँ मुलाकातों में जाने के लिए तालीम नहीं है। समझ ना बात है कि भाई मुलाकातों में जाना है, सब जोड़ जाएं, इसके लिए थोड़ी देर तालीम करें, इसके लिए तालीम को नहीं वापर रहे हैं। भाई हर जोड़ी अपनी अपनी जोड़ियात बनी हुई अपनी अपनी मुलाकातों में जाएगी, उसमें जमा होना जोड़ने की तो कोई तकाजा ही नहीं होता। आप अपने साथियों को लेकर चले जाओ, या अपने साथियों को लेकर, या अपने साथियों को लेकर, उसमें सबको जोड़ने का क्या मसला है? तो इस जोड़ने के लिए हम तालीम के अमल को नहीं इस्तेमाल करेंगे। समझ ना बात? हमारे वहाँ मस्जिद की एक तालीम है। कौन सी तालीम? कि कोई वक्त में तालीम आप कर लें। हाँ, आइम्मा होते हैं जो अपने हिसाब से और कोई तालीम करते हैं, वो अलग बात है। बाकी तबलीगी नहज में अपनी एक तालीम है, वो करनी है। बाकी बाज़ आइम्मा अपने हिसाब से कोई किताब पढ़े, वो एक उनका अपना अमल है, उसमें हम शरीक हो जाएंगे अगर हमारे पास गुंजाइश है तो। लेकिन हमारे वहाँ एक तालीम होती है, उसको हम अच्छी मजबूत करेंगे इसकी फिक्र, और उसमें अपने सारे मुसल्लियों को बिठाने की, और इस फिक्र को एक एक घर में भरने की कोशिश करें। जब इंशाल्लाह घरों में ये तालीम होगी ना, हज़रत जी फरमाते थे कि तुम्हारे घरों के वो सुराख, जिन सुराखों से घरों में बेदी नहीं दाखिल होती है, वो सुराख बंद हो जाएंगे। हमारे घर में अगर तालीम का अमल शुरू नहीं हुआ ना, तो ईमान वाले के घर में 24 घंटे में अल्लाह रसूल का कोई तस्करा ही नहीं होता। आइए देखो, मस्जिद और जमात के अक्सर साथी बैठे हैं, आप अपना जायजा लो। हम अपने घरों में अल्लाह रसूल की बात करते हैं? जब हम नहीं करते तो पब्लिक क्या करती होगी? तो कम से कम तालीम के बहाने अल्लाह रसूल के तस्करे तो हो जाए। उसके लिए अपने मुदाकरों में भी इसकी तरगीब दें, और अपनी मुलाकातों में भी इसकी तरगीब दें। करेंगे इससे फिक्र इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे, कबूल फरमाए। भाई और कोई साथी आ जाओ, आप आ जाओ, कोई एक साथी आ जाओ, भाई आ जाओ। क्या है यार, बुजुर्ग हो गए। भाई अभी तो तय हुआ था कि हम नहीं जाएंगे, और बुजुर्ग अभी तो ये तय हुआ था मशवरे से कि हम जाएंगे नहीं। मुसलमान की गर्दनों को फलांग कर आना और जाना दोनों मना है। अच्छा, आप ये बताओ कि आपकी मस्जिद में 3 दिन की जमात कैसे बनती है, कितनी बनती है, और उसके रवानगी कर्जदारी वापसी कैसे होती है? हमारी मस्जिद में महीने की 4 जमात बनती है। माशाअल्लाह। आप कहाँ के हो? बाबर। हाँ, बाबर। बाबर, ठीक। 4 जमात बनती है, माशाअल्लाह। आपके मस्जिद में कितने मकान हैं? हमारे मस्जिद में 70 मकान है मस्जिद के अतराफ। माशाअल्लाह, 70 मकानों में 4 जमात बनती है। तो आपके वहाँ 4 में भाई तशरीफ रखें, ऐसा ना करें। आप तो जवान लोग हैं, आप भी ऐसा करोगे? देखो, तस्बीह का एक दाना टूटता है ना, तो पूरी तस्बीह बिखर जाती है, और आप तो इतनी जुर्रत से जा रहे हैं, ऐसा ना करें। हम आपको पहले ही कह रहे थे कि आपको बैठना है तो बैठिए, वरना आप तशरीफ ले जाएं, लेकिन मोतियों को बिखेरे मत जी। तो आपके वहाँ तो 70 मकाने, महीने की 4 जमातें जाती है ना, माशाल्लाह। आपकी मस्जिद में वक्त लगे हुए अमला कितना है? 4 महीने वाले 115 साल 70 मकान में जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। कितने बालिग मर्दों की तादाद है? 140-45। 145 में से 4 महीने कितनों के लगे हैं? 115 के। और साल वाले मौलवी साहब भी होंगे? नहीं, साल वाले उनमें। अच्छा, साल वाले वाला माइकला। और आपकी मस्जिद में जो जमात लेकर जा सके ऐसे साथी कितने हैं? 15 साथी। 15 साथी। और आपके पास इतने साथी हैं तो आपकी 4 ही जमात क्यों जा रही है? आपके 15 साथी है, तो 15 के साथ जमात बने तो कितने महीने की जमात बनेगी? 7 बनेगी। दो जोड़े बना। अमीर एक
और जो 110 है उसमें दूसरे मुआविन, 15 ये अमीर में से मुआविन नहीं होता। ये 15 जो अमीर है वो तो अमीर, और जो 110 4 महीने वाले हैं उसमें से मुआविन। तो 15 जोड़ियां बने तो कितनी जमातें होगी? 15 जोड़ियां, बराबर है? अरे भाई बराबर है। तो आपकी इस्तेदाद 15 जमातों की है, तो आप 4 ही जमात क्यों बनाते हैं? मेहनत तो पूरे मजमे पर करते हैं, हाँ, लेकिन काबू में एक जमात आ जाती है हफ्ते में। काबू में 4 जमात आती है। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने जो तरतीब समझाई है कि आप हजरात जितने जमात लेकर जाने वाले साथी हों उनकी एक अमीर और मुआविन देकर जोड़ियां बनाओ और उनको कहो तुम मेहनत करके अपनी जमात बनाओ। ये तरतीब आपने बनाई है अपनी मस्जिद में? जी बनाए हुए हैं। बनाई है। तो आपने ऐसी कितनी जोड़ियां बनाई है? हमने 5-6 जोड़ियाँ बनाई हैं। तो 15 की आपने 5 बनाई, तो 5 जोड़ियां बनाओगे तो 15 जमातें बनेगी। आपने जोड़ियां ही 5 बनाई है और आप 15 की आशा करो तो हो जाएगा। वही हम 2-2 साथी 2-2 अमीर मिला तो आपने ऐसा आपको किसने सुनाया था 2-2 अमीर को मिलाना? आपने ऐसा नहीं सुना था कि एक अमीर और एक मुआविन? भाई आप लोगों ने क्या सुना, अमीर मुआविन सुना या 2 अमीरों को मिलाने का सुना? जरा जोर से बोलो। सबने तो अमीर मुआविन का सुना था, आपने 2 अमीरों का कहाँ से सुना था? अब तौबा कर लोगे इससे? चलो ठीक। तो आप क्या बनाओगे? 15 एक अमीर और एक मुआविन। उनके साथ जोड़ियां बनाओ। मुश्किल बात नहीं है। जिस अल्लाह ने 5 जमातें बनाई वो अल्लाह 15 भी बनाएगा। अब देखो माशाल्लाह 70 मकानों में 110 साथियों के 4 महीने लगे, तो जो अल्लाह 70 मकानों में 110 आदमी दे सकता है वो अल्लाह 15 जमात नहीं देगा। तो आप तो अल्लाह से अच्छा गुमान करके 15 जोड़ियां बनाइए, ठीक है इंशाअल्लाह। हमारा तो हदफ ये कि हमारे मोहल्ले के सारे बालिग मर्दों का हर महीने से रोजा लगे, हर महीने के से रोजा लगे। लेकिन कम से कम तदबीर इतनों की तो करें जितना हमारे पास पूंजी है। 15 की पूंजी है, 15 की तदबीर तो करें। तो हमारे बुजुर्ग जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया का अमीर नबी बना कर भेजा, लेकिन जहाँ तक खुद जा सकते थे गए, नहीं जा सकते थे वहाँ लोगों को भेजा। तो हम भी पूरे आलम के लिए, तो जितनी कैपिटल इतनी तदबीर करेंगे, बाकी की कोशिश करेंगे। समझ रहे बात आप? तो आप 15 जोड़ियां बनाइए, ठीक है, अच्छी बात। और कोशिश करें कि हमारे मोहल्ले के हर फर्द के से रोजे लगे। वो इस वजह से कि जब तक वक्त नहीं लगता तो जहन नहीं बदलता। वक्त नहीं लगता क्या नहीं बनता? जहन नहीं बदलता। वक्त लगाने में एक अजीब और गरीब तासीर है। टपोरी किस्म का आदमी है। कौन सा आदमी? अरे बोलो तो खरे, टपोरी। और सामान उठाकर मस्जिद में से निकलता है तो ऐसे अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डालते हैं कि कल उसको जो गाली देता था वो कहता जमात में जब ओ भाई दुआ करना, अरे वही है टपोरी का जो गाली देता था वही है। लेकिन अल्लाह पाक एकदम दिल पर टाके बोला ऐसा होता ही नहीं होता। अरे बोलो तो खरे हुआ करो कि पहले दिन अभी तो गया सामान उठाकर, अभी तो गया भी नहीं है, मस्जिद में बैठा है। और जिस टपोरी को कल लोग गाली दे रहे थे वो उसको क्या कहने आते हैं? अरे बोलो तो खरे, एकदम पलटा खाता है, अभी तो निकला भी नहीं है। अल्लाह दिल पलटा। और वो जो एक नमाज नहीं पढ़ता था वो वहाँ तहज्जुद भी पढ़ता है। एक चम्मच एकदम निकलने के ये नफे होते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कोशिश करो कि हमारे मोहल्ले के हर फर्द के से रोजा लगे। तो हम सब मस्जिद वाले इसको हदफ बनाएं। हमारा 1 जमात 2 जमात 3 जमात का मसला नहीं है। मोहल्ले के हर फर्द 27 दिन तक इस बिगड़े हुए माहौल में एक आदमी है। अब उस माहौल में से कम रोजे जब उसके लगेंगे, उसकी फिक्र, उसकी सोच, सब चीज़ों में इंशाल्लाह जिला पैदा हो जाएगा। इसलिए हर एक के लगवाने, लेकिन कम से कम इतनी जमातें हमारी मस्जिद की ज़रूर बने जितनी जमातों को लेकर जाने वाले हमारी मस्जिद में साथी। मसलन इनकी मस्जिद में 15 है, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं एक अमीर और एक माविन 2 की जोड़ी बनाओ और पूरा महीना मेहनत करो। और हमारे बुजुर्ग थे सईद भाई भोपाली, वो तो यूं कहते थे कि अगर इस तरह जोड़ी बनने के बाद उसकी मस्जिद में उसका साथ देने वाला कोई भी ना हो, वो एकला का एकला हो, तो भी वो जमात बना सकता है। भाई कैसे बना सकता है? तो हजरत यूं कहते थे कि अच्छा बताओ, वो एक जोड़ी उसने नियत कर ली कि मुझे 27 दिन तक मेहनत करके 28वें दिन जमात में जाना है। अब वो एक जोड़ी ने रोज 2.5 कलाक लगाने शुरू किए, तो एक आदमी 2.5 कलाक में कितनी मुलाकात कर सकता है? कम से कम 4-5। अब वो 27 दिन तक कंटिन्यू एक जोड़ी मुलाकात करे तो एक दिन में 5, तो 27 दिन में कितनी? 135। एक जोड़ी है, मस्जिद में कोई साथ देने वाला नहीं। वो एक जोड़ी रोज कंटिन्यू 2.5 कलाक लगाए तो एक जोड़ी एक महीने में 27 दिनों में 135 मुलाकातें कर सकती है। तो वो जोड़ी तो 2 है, तो 135 में से क्या 8-10 आदमी उसको नहीं मिल जाएंगे? अल्लाह बोलो तो करे, तो उसकी जमात तैयार।
तो हर जोड़ी अगर इस तरह मेहनत पर पड़ जाए तो उसकी जमात आराम। मौलाना सही साहब कहते थे एक जोड़ी है कोई साथ देने वाला नहीं, वो भी अगर जमात बनाना चाहे तो बन जाए। बोलो आसान है क्या मुश्किल? इसलिए हम सब तय करें कि अपनी मस्जिदों में जितनी जोड़ियां हैं हर एक जोड़ी को तरतीब देनी है और हर जोड़ी को मेहनत की सही तदबीर समझानी है। करोगे इसकी फिक्र इंशाअल्लाह। और उनकी रवानगी वापसी कर्जदारी कितनी देर होती है? रवानगी की बात होती है आधा घंटा, वापसी की बात 15-20 मिनट कारगुजारी, थोड़ी बहुत बात हो जाती है वापसी की। अच्छा जी, तो आप इसको ऐसा क्यों कर रहे हो? इतना अच्छा जोरदार काम करते हो, रवानगी वापसी कर्जदारी थोड़ी सी कच्ची कच्ची क्यों रखते हो? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि 3 दिन की जमात की रवानगी के बाद 4 महीने की जमात की तरह मजबूत बनाओ। क्यों पता है? अरे बोलो क्यों पता है? अक्सर हमारा नवा मजमा जो आता है वो 4 महीने के रास्ते से आता है या 3 दिन के रास्ते से? जरा जोर से बोलो। 3 दिन। अब 3 दिन के रास्ते से नवा मजमा आया और हमने उसको कोई रवानगी की बात नहीं समझाई, ठीक है? अब वो जमात में गया, अब उसको पता नहीं है जमात में क्या करना है। अब जमात में जो जो हरकतें होंगी वो ऐसा समझेगा ये भी जमात का भाग है। क्या है? 2 लड़े उसको भी कहेगा ये भी जमात में होता है, किसी ने को गाली दी का ये भी जमात में चलता है, तो उसी को वो जमात का काम समझेगा। और अगर हमने उसको रवानगी की बात मजबूत समझा कर भेजी तो फिर वो समझेगा कि क्या क्या करने का होता है, क्या क्या नहीं करने का होता है, और खुदा न करे उसके अलावा कुछ होगा तो समझेगा कि गलत हो रहा है, खरा करने का तो वही है जो रवानगी की बात में कहा था। तो उसको खरी खरी बात समझ में आएगी और वो खरे काम करने वाला बनेगा। और अगर हमने समझाए बगैर उनको भेजा तो बेचारे की शुरुआत है और रवानगी की बात हमने की नहीं और जमात में खुदा न करे कोई 19 हुआ, वो तो उसी को क्या समझेगा? अरे बोलो क्या समझेगा? तबलीग समझेगा। क्या समझेगा? आपने वो वाकया सुना है? मौलाना यूनुस पुना सुनाते थे, जिसने कोई अमल नहीं देखा होता फिर वो जो देखते हैं उसी को अमल समझते हैं। मौलाना सुनाते थे कि एक आदमी था, उसको नमाज पढ़ते नहीं आती थी, नमाज पढ़ते नहीं आती थी, तो उसने इमाम साहब से कहा मुझे नमाज सीखनी है। सिखाओगे? कहाँ सिखाऊंगा? कहा फला टाइम में तेरे घर आकर सिखाऊंगा। तो वो आदमी ने घर वाली को जाकर कहा मौलाना आएंगे मुझे नमाज सिखाने। कहा बहुत अच्छा है, उसको भी नहीं आती थी। तो उसने घर को जरा साफ वाफ कर दिया और इमाम साहब आए और इमाम साहब ने आकर उसको कहा मैं जैसा बोलूँ ऐसा तुझे बोलने का, तो नमाज सिखाने के लिए। तो उसने कहा ठीक। तो इमाम साहब ने कहा बोल अल्लाह अकबर, तो बोला बोल अल्लाह अकबर, ऐसा बोला। तो इमाम साहब कहने लगे अरे अल्लाह बोल मत बोल, तो वो कहने लगा अल्लाह बोल मत बोल, समझे बात? अल्लाह बोल मत बोल यूं। तो इमाम साहब ने जरा चिढ़ कर कहा अरे भाई तुझे कह रहा हूँ अल्लाह अकबर बोल, बोल मत बोल। तो कहने लगा भाई तू बोल मत बोल, अल्लाह अकबर बोल। यूं होते होते दोनों को गुस्सा, इमाम साहब को गुस्सा, एक ठोक दी तो उसने भी एक ठोक दी। इमाम साहब को गुस्सा, उसको पछाड़ा तो उसने भी उसको पछाड़ा। फिर यूं देख रही थी और ये देख कर कहने लगी अच्छा पछाड़ा पछाड़ी इतनी लंबी नमाज है, मुझे क्या खबर थी, वरना मैं ज्यादा पोता लगा देती। थोड़े में ये क्या हुआ, यहाँ क्या गड़बड़ हो गई? वो जानती नहीं थी नमाज क्या होती है। तो जो हो रही है उसी को क्या समझ रही है? अरे बोलो क्या समझ रही है? तो अगर तुमने 3 दिन की जमात को रवानगी की बात नहीं सुनाई तो वहाँ पछाड़ा पछाड़ी होगा, वो भी क्या समझेगा? जरा बोलो, ये भी तबलीग। हालांकि हमारे वहाँ तो 3 काम समझाने के हैं रवानगी में, नकद जमात बनाना, मस्जिदवार जमात बनाना, अपना वक्त अच्छा वो समझाना। तो वो अगर वो समझाने के लिए बैठे ना, इतनी लंबी बात होगी कि तुम सोच भाई 4 काम करने के, 4 काम नहीं करने के, 4 कामों में कम से कम वक्त लगाने का, 4 काम बिल्कुल नहीं बोलने के, कि ये 12 चीजें हो गई। अमीर की इताअत है, फिर उसके बाद नकद जमात बनाना है, मस्जिदवार जमात बनाना है, अपना वक्त अच्छा गुजारना है, और 5 गश्त करने हैं। ये सबको 2-2 मिनट समझाओ तो कितने मिनट होगा? अरे बोलो तो खरे। नकद जमात बनाने का 2 मिनट में समझाओ, 2 मिनट में आया यहाँ कंप्यूटर होगा यूँ समझा देना 2 मिनट में नकद जमात कैसे बनती है। मस्जिदवार जमात बनाना 2 मिनट में समझा दो कंप्यूटर के बटन की तरह, 4 मिनट हो गई। 4 कामों में वक्त लगाना, दावत में, तालीम व ताल्लुम में, जिक्र इबादत और खिदमत में, वो 2-2 मिनट समझाओ तो कितने मिनट हो गई? 8। 4 कामों में कम से कम वक्त लगाना, वो 2-2 मिनट में समझा दो। अरे बोलो, 4 काम बिल्कुल नहीं करने के हैं, वो 2-2 मिनट में समझा दो। 4 कामों में कम से कम वक्त लगाना है, वो 2-2 मिनट। 4 काम बिल्कुल नहीं बोलना है, वो 2-2 मिनट में समझा दो। और फिर मस्जिद में कैसे रहना, वो 2 मिनट में समझा दो। अमीर के साथ 2 मिनट में समझा दो। खिदमत कैसे कर, वो सब 2-2 मिनट समझाओ तो भी कितनी मिनट हो जाएगी? हम तो सब कुतुब हैं, 2 मिनट में ही समझा देंगे साथ। बोला ऐसा ही है ना? अल्लाह भाई इसको 1-1 मिनट समझाओ तो भी 60 मिनट तो हो जाएगी, फिर ये 15 मिनट में कैसे हो जाता है, आधे घंटे में कैसे हो जाता है? तो सच बताओ, हम जमात के साथ अमानत बरतते हैं या खयानत करते हैं?
तो बताओ फिर उसके नतीजे क्या आएंगे। इसलिए गुजारिश है कि ऐसा नहीं करें, रवानगी की बात जम कर करें, चाहे मोड़ा हो जाए। बाज़ मरतबा हमको ऐसा होता है कि भाई देर हो गई है, जल्दी जल्दी, भाई एक तो गुनाह किया ही है, अब नमाज में मोड़ा हो रहा है, 4 की 2 पढ़ रहा है, ऐसा ही ना। भाई मोड़ा हो गया है इसलिए 3 की 1.5 पढ़ डालो, ऐसा करेंगे? भाई एक तो मोड़ा किया, वो खोटा तो किया, अब दूसरा खोटा का को करते हो। भाई मोड़ा किया, वो जमात तो मोड़ी गई, तो आप कोशिश ये करो भाई रवानगी पूरी करो, समझ रहे हैं? इसलिए पूरी रवानगी, जैसे 4 महीने की जमात की ऐसे रवानगी करोगे इंशाअल्लाह। और जब वो वापस आए तो वापसी में कर्जदारी भी ऐसे ही करनी, वापसी में कर्जदारी भी ऐसी जमकर कर्जदारी लो उसकी, क्योंकि 3 दिन गए थे तो इतना समझाया, अब तो 27 दिन यहाँ रहना है और लफड़ों में रहना है, अम्मी अब्बा बीवी बच्चे झमेले उसमें रहना है, उसको काम भी करना है, अच्छे अंदाज से रहना है, वो नहीं समझाना पड़ेगा। तो कर्जदारी भी लें, वापसी की बात भी करें, करोगे इंशाअल्लाह। अगर ये काम इस तरतीब पर हुआ तो 100% मजमा भी खड़ा होगा और ये नफा बख्श अमल होंगे। वरना अगर इसको रिवाजी बना दिया तो ये रिवाज बन जाएगा, फिर काम होगा नफा नहीं होगा। करोगे इंशाअल्लाह। आइंदा साल तक अगर इस तरह सारे हल्के ने मेहनत कर ली तो आप देखोगे एकदम काम उठान पर जाएगा। कल माफ करना, बुरा ना समझो तो एक बात कहूं, आपको बुरा लग जाएगा। मैंने कल कर्जदारी 2 चीजें आपकी सुनी, जोन की कर्जदारी सुनी और परसों असर के मशवरे की कर्जदारी सुनी। गैर महसूस तरीके पर 2 चीजें यहाँ हो रही है। एक, आपका काम इज्तिमा पर जा रहा है, साल भर में सिर्फ पट्टन हल्के में 110 मस्जिदें हैं। पूरे जिले की कितनी मस्जिदें हैं शेख साहब? 140। सिर्फ 8 जमातें पूरे साल में आपकी गई 4 महीने की, पूरे साल में 8 जमातें। कल एक जिले वाले ने सुनाया था कि अभी हमारा इज्तिमा नहीं हुआ लेकिन साल भर में 33 जमातें रवाना हो गई। हमारा काम इज्तिमा पर नहीं होना चाहिए। हम अपने साथी जितने साथी हैं उसकी, जैसे अभी मैंने बताया, इसकी जोड़ियां बनाएं। यही जोड़ियां 3-3 दिन भी जाएगी, यही जोड़ियां सालाना वक्त लगाएगी। अगर ये 15 जोड़ियां अगर हर महीने 3 दिन की इस तरह जमात बनाए तो एकदम लेवल ऊपर जाएगा। 15 जमातें 3 दिन की, यही 15 जोड़ियां अपना सालाना वक्त तय कर दें। अगर सालाना वक्त तय करेगी तो वो मस्जिद की 15 जमातें बनेगी, 4 महीने चिल्ले की, 4 महीने और चिल्ले की 15 जमातें बनेगी, एकदम काम की सतह ऊपर जाएगी। कल एक चीज देखी कि एक अमला बहुत अच्छा है, वक्त लगाया हुआ, 4 महीने वाला, चिल्ले वाला, जमातों को लेकर जाने वाला, और साल भर में चिल्ले की 4 जमातें, पूरे हल्के से 5 जमातें, और वहां 12-12 मस्जिदें हैं। मस्जिद के सतह पर एक जमात भी नहीं पड़ी। तो हम इसको गंभीरता से सोचें। और ये इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा मजमा, इसमें अक्सर मजमा हुआ है जो अमीर बनकर जाता होगा। अगर यही अपना सालाना वक्त लगाएं तो आप हजरत की सतह एकदम ऊपर जाएगी। मुझे तो दुख हुआ, मैं ऐसा समझा कि आप 90 तक पहुंच गए थे, आपकी इज्तिमा से 90 जमातें जा रही थी, अब नीचे आते आते 47 पर आप गए हो, 47 पर आप गए। और कल देखा जोनों की जमातों की कर्जदारी में, हमारे अतराफ में अभी वो देहात हैं कि इतने सालों की मेहनत के बाद अभी उन देहातों में नमाज शुरू नहीं हुई, उन देहातों में अभी कलमा ठीक नहीं हुआ। और ये यहाँ इस जिले में कोई सोच सकता है? आपकी इस्तेदाद ये है, इस्तेदाद आपके पास है, उसको इस्तेमाल में लाना है, उसकी तदबीर करना है। अगर आप 1 साल अगर मन बनाकर इसको कर लो ना, तो ये देहातों को अपने जिम्मे ले लो और अपनी जितने साथी इस्तेदाद के हैं उनके साथ जोड़ियां बनाकर सालाना और माहाना जोड़ियों की तरतीब बनाओ, एकदम काम ऊपर जाएगी। और देखो, काम नीचे गया इसका मतलब ये ना समझना काम नीचे गया। भाई जिस लिफ्ट में हम बैठे हैं वो लिफ्ट नीचे जाएगी तो हम भी कहाँ जाएंगे? नीचे। जिस ट्रेन में हम बैठे हैं वो ट्रेन रुकेगी तो हम भी रुकेंगे। ऐसा नहीं कि काम जाता है, काम हमसे जुड़ा हुआ है और हम काम से जुड़े हैं। काम के बढ़ने से हम बढ़ेंगे और उसके पीछे आने से हम पीछे जाएंगे। और अगर हम पीछे आए तो चढ़ाऊ पर से चढ़ी हुई गाड़ी रिवर्स आती है तो और नीचे जाती है। इसलिए हम अपने आप को बतकल्लुफ आगे बढ़ाएं और उसका इलाज ये है कि वो अपनी कुर्बानियों को बढ़ाएं। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास एक इलाके के लोग आए और कहने लगे, हजरत हमारे वहाँ काम बहुत कमजोर हो गया, दुआ फरमा ले। तो हजरत ने फरमाया, काम का कोई जिस्म थोड़ी है कि वो कमजोर हो गया है, वो बैठ गया है, तुम बैठ गए इसलिए काम बैठ गया, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ने हमें इस जमाने में तौफीक दी। देखो हम और आप नहीं लगे, हमारे अल्लाह ने हमको लगाया। हजारों लोग चाहते हैं, हजारों लोग करना चाहते हैं, हजारों लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें छांटा है, अल्लाह ने हमें मुंतखब किया है, अल्लाह ने हमें चुना है। ऐसा ना हो जाए कि हमारी नाकदरी की वजह से हम रह जाएं और अल्लाह औरों से काम ले। अल्लाह तो किसी से भी ले लेगा, अल्लाह तो किसी से भी ले लेता है,
तो ऐसा ना हो जाए कि हमसे कमजोरी रहे, सुस्ती रहे और हम रह जाएं और दूसरे लोग आगे निकल जाएं। इसलिए हम अल्लाह से माफ़ी मांगें और सब तय करें कब तक जो सुस्ती हुई है उस सुस्ती को दूर करेंगे और अब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जिस सतह पर है उससे आगे जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन नियत करता है करेंगे? अल्लाह किताबों में आता है अल्लाह तुम्हारे अंदर भीतर में देखता है, अगर तुम अंदर से सच्चे हो अल्लाह तुम्हें सच्चा कर बताएगा। इन यालमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा, हम तुम्हारे अंदर देखेंगे, तुम सच्चे हो अल्लाह सच्चा कर बताएगा। अंदर के फैसलों में कमजोरी होगी अल्लाह और कैसे से लेगा, हम रह जाएंगे। अल्लाह को तो बहुत मिल जाएंगे, हम रह जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को पीछे नहीं रखेंगे। सब तय करते हुए इंशाअल्लाह, तो इसमें ये मजमा तय कर लेके इंशाअल्लाह इस साल से ही हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। इस साल से ही हम अपने आप को, और बहुत दिन हो गए हमें आगे पीछे होते हुए, इंशाल्लाह पहल करते हुए इस साल सबसे पहले तो हम 4 महीने लगा देंगे। लगा दोगे इंशाल्लाह? अब इज्तिमा पर नहीं रखेंगे, दौरान इस साल अपनी अपनी मस्जिदों से जमात बनाकर, मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हक मुझ पर यह बनता था मैं हर साल 4 महीने जाऊं, हर साल 4 महीने जाऊं। 8 महीने दुनिया की मशगूलियों के बाद, लेकिन अगर मैं हर साल नहीं जा पाता 2 साल में तो जाऊं, 3 साल में जाऊं। मुझे 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। जब बैरून जाना होता है मैं चला जाता हूँ, अंदर से मैं कब से नहीं गया हूँ अंदरून में। और मेरी मस्जिद से जमात इसलिए नहीं बनी कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। इसलिए सब तय करो कि इस चीज की पहल मैं करूंगा और इस साल इंशाल्लाह मैं अपने 4 महीने लगाऊंगा। लगाओगे? अरे भाई लगाओगे? और अब खुद नहीं लगाऊंगा, अपनी मस्जिद से जमात बनाऊंगा। अपनी मस्जिद से क्या बनाऊंगा बोलो? कौन कौन बनाएगा अपनी मस्जिद से जमात? अच्छा, जो इस साल 4 महीने लगाने को कह रहे हैं जरा खड़े हो जाओ। इंशाल्लाह हम 4 महीने इस साल लगाएंगे, जरा खड़े हो जाओ।